जय जिनेन्द्र। आज आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैं નરક ગતિનો જે પાઠ વાંચ્યું તમે માનશો, જઘન્યથી એક સમયે નરકમાં જીવ ઉપજે, એટલે 1 મિનિટમાં તો અસંખ્ય જીવ થઈ ગયા. અને ઉત્કૃષ્ટ એટલે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ વધારેમાં વધારે ગેપ ક્યાં સુધી પડે, તો બોલો ખાલી 12 મુહૂર્ત. કલ્પના કરો તમે, એટલે કન્ટિન્યુ ઉપજ્યા જ કરે છે એમ કહીએ તો ચાલે. એનો અર્થ એવો થયો ને કે 12 મુહૂર્તથી વધારે ગેપ જ નથી પડતો, એટલે દિવસના સીધા 2 તો થઈ ગયા, 2-2.5 જીવ તો થઈ ગયા એમ કહેવાનો અર્થ. એટલે કંઈ એટલું બધું કંઈ સહેલું નથી ભાઈ આ બધામાંથી બચવું. કન્ટિન્યુ નરકમાં બી કન્ટિન્યુ જીવ જયા કરે, કર્મથી છોડીને બહાર નીકળવું એટલું અઘરું છે. સમજાઈ જાય એને જ સમજાઈ જાય, બાકી નથી સમજાતું. શું બરાબર? આમાંથી બહાર નીકળવાનું મન થઈ જાય ને ક્યારે પાછું એમાં જતા રહેવાનું મન થાય છે ને એ નથી ખબર પડતી. હા, તો પણ એટલી જ આપણે મારા સાહેબના જ્યારે વાક્ય સાંભળીએ છીએ ત્યારે આમ એટલું બધું આમ ધ્યાનથી બી નથી સાંભળતા. ધ્યાનથી હા, એટલે આપણે ધ્યાનથી નથી સાંભળતા એ જ આપણને પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે ને, એ જ તો વાત છે એમ. કારણ કે એકચ્યુઅલી શું છે, કામની ગાય હોય, ઓલું હોય, એટલે સ્પીડ ના થતી હોય, અને આ તો આપણે આમ નિરાતે આમાં જ માઇન્ડ કોન્સન્ટ્રેટ કરે એટલે આમ યાદગી હા ને ગમે છે. મીન્સ એમ કે ભાઈ હવે ક્યારે આગળ પાછું નવું ક્યારે શીખીએ, નવું ક્યારે સાંભળીએ. હા, સાચી વાત, સાચી વાત. અને એના કરતાં બી આપણે કમ્ફર્ટેબલ ઝોનમાં સાંભળી રહ્યા છીએ. જો સૌથી પહેલી વાત આ જ છે ને, કારણ કે ઓલું તો આપણે નીચે જઈએ તૈયાર થઈને કંઈક બગડે. હા, અને એમાં તો શું પાછી કન્ટિન્યુટી રહી ના રહી, આમાં તો તમારી રહેવાની જ છે, કમ્પલસરી રહેવાની છે. આજે નહીં સંભળાયું તો તમે વિડીયો જોઈ લેશો, એટલે એ બી એક ફરક પડી જાય છે. એટલે ગમે છે મેઇન. આમાં શું છે, તમે આમાંથી લિંક તૂટતી નથી ને એટલે તમને ગમે છે. હા, લિંક આમાં તૂટી જાય ને તો તમને નહીં ગમે પાછું. બરાબર. ચાલ આગળ જઈએ. ચાલ, હા હા, ચલો. જય જિનેન્દ્ર. હા, બોલ બોલ બોલ. અચ્છા, મને અણના અંગારનું દ્રષ્ટાંત ખબર છે. હા, ધનના અણગારનું. એ તો ભગવાન એના વખાણ કરે છે ધનના અણગારના, તો ખબર છે. હા, મને ખબર છે. શ્રેણિક રાજાને પૂછ્યું કે તમારા 14,000 માં કોણ શ્રેષ્ઠ? હા, એ સમજવા જેવું છે. એ સમજવા જેવું છે. ના, શું થયું એટલે એમ તો બહુ નાની વાત હતી. શાલીભદ્રના બનેવી થાય ધનના અણગાર. શાલીભદ્ર તો ખ્યાલ છે ને, શાલીભદ્રની પેટીઓ આવતી, એને રોજ 99 કરોડની પેટીઓ આવતી. એના પિતા, उनके पिता देव हुए थे, शालीभद्र के मरने के बाद, और देव हो गए थे, और अपने पुत्र प्रेम के प्रति उनको राग ज़्यादा था. इसलिए वो क्या कर रहे थे कि शालीभद्र को रोज़ 99 पेटी भेज रहे थे. उसमें 99 पेटी में वस्त्र, आभूषण, फिर जो सोना मोहर सब उसमें होता था कि मेरे बेटा आराम से जिए बस. और शालीभद्र को तो वही मौज शौक, उससे वो बाहर ही नहीं आता था, क्योंकि पैसे ऐसे ही आ रहे थे, कमाने की जरूरत नहीं थी. बराबर, कमाने की उसको ज़रूरत नहीं थी, कमाने की ज़रूरत नहीं रही थी, इसीलिए वो आराम से अपनी ऐशो आराम में ज़िंदगी जी रहा था. तब उसको एक दिन ऐसा हुआ कि ऐसी बहुत ज़्यादा भोगने के बाद भी इंसान को उससे थोड़ा सा, हम बोलते हैं ना, ऊब जाते हैं, राइट. चारों तरफ से पैसा मिले, सब चीज़ मिले, तो आपका पेट भी जल्दी भर जाएगा, मन भी जल्दी भर जाएगा. और तब श्रेणिक राजा उसके महल में एक बार ये हुआ कि रानी की दासी
श्रेणिक राजा की पत्नी है, रानी है, जो महारानी है, उसकी दासी एक बार ऐसा रत्न कंबल पहन के आई। रत्न कंबल यानी कि जो चोली होती है ना ऊपर पहनने की, चोली रत्न से बनी हुई थी। तो वो रत्न कंबल पहन के आई तो रानी ने स्वाभाविक पूछ लिया, अरे तेरे पास रत्न की चोली है, क्या बात है, मेरे पास नहीं है, तेरे पास कहाँ से आई? रानी तो सोचेगी ना ऐसा कि ऐसी रत्न कंबल तो हम रानियों के पास नहीं है, तो तू तो दासी है, तू ये लाई कहाँ से? तो वो बोली कि मैं शालीभद्र के यहाँ नौकरी कर रही हूँ और दासी हूँ, मैं वहाँ भी जाती हूँ और उनकी पत्नियाँ ऐसे रत्न कंबल रोज पहनती है, तो उन लोगों को तो क्या एक दिन पहनने के बाद दूसरे दिन वो दासियों को दे देते हैं, तो उसने मुझे ये दे दी। तब उसने सोचा कि अरे इतना महंगा रत्न कंबल, रत्न से बने हुए कपड़े, और ये दासी को दे देती है, रोज पहन के छोड़ देती है। उसने राजा को बताया, राजा को भी सरप्राइज हुआ कि ऐसे मेरे नगर के ऐसे श्रेष्ठी कैसे है, इसके पास इतना कैसा पैसा है। तो उसने बुलाया शालीभद्र को बुलाया और पूछा कि भाई तेरे पास तेरी दासियाँ ऐसे रत्न कंबल पहन रही, मतलब तेरे पास ज़्यादा पैसा है, और ज़्यादा पैसा है तो तू आया कहाँ से, सारा हिसाब दे मुझे। हिसाब तो देना पड़ेगा ना राजा को। तो मेरी बात सुन रहे हो ना सब? हाँ, तो हिसाब मांगा। अब शालीभद्र को समझ में आया कि मैं पूरे इतने सारे पैसे वाला होके भी मैं दबा हुआ हूँ, मेरे ऊपर किसी का हाथ है और मुझे भी किसी को जवाब देना पड़ेगा। शालीभद्र ने घर चला गया, वो बोला मैं सोच के बताऊँगा आपको, मैं बताऊँगा कि मेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो वो एक बार घर चला गया। फिर जब दूसरे ही दिन जब वो 99 पेटी आई, तब उसने वो देव बन के पिता दे रहे थे, तो उसने अपने पिता को पूछा कि देव को पूछा कि आप ये मुझे पेटी तो दे रहे हो, लेकिन मैं लोगों को क्या जवाब दूँ? लोग पूछ रहे हैं कि इतने सारे पैसे तेरे पास आए कहाँ से, तो मैं उनको क्या जवाब दूँ? तब देव ने बोला कि तू ऐसा कहे, क्योंकि मैं तेरे पूर्व जन्म का पिता हूँ और मैं मोहवश होके तू मेरा बेटा है, इसलिए मैं तेरे को ये रोज़ पेटियाँ दे रहा हूँ। अब अगर ये बात राजा को मालूम पड़ गई और राजा ने कल से पेटी मंगानी शुरू कर दी तो मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि देवों की भी एक लिमिट होती है ना, उनकी भी एक लिमिट होती है, हर एक का अपना एक कर्म होता है। और अब ये बात अगर राजा को भी मालूम पड़ गई कि ये देव दे रहा है, तो शालीभद्र और फंसेगा। क्यों? क्योंकि राजा बोलेगा कि मेरे सामने लाओ देव को, मुझे प्रूफ चाहिए। राजा को बिना प्रूफ तो मानेगा नहीं, मानेगा क्या बताओ? नहीं, वो मानेगा नहीं। अब शालीभद्र के लिए तब उसने पूछा कि पिता को कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि अब मैं नहीं राजा से झूठ बोल पाऊँगा और ना ही राजा से छुपा पाऊँगा। आप ये कल से पेटी भेजना बंद कर दीजिए। उसने ये बोला कि आप ये मत दीजिए, तो कि नहीं, तू तो मेरा बेटा है, तू कमाने जा नहीं रहा है, तू ये नहीं कर रहा है, तू अपना खर्चा निकालेगा कैसे? शालीभद्र सोच में पड़ गया, ऐसा सोच में पड़ गया कि अब इसका रास्ता कैसे हो। तब उसने ये भगवान आए थे उधर और उसने बात सुनी, तब उसको समझ में आया कि चाहे कितना भी संसार में आप धनवान हो, पुण्यवान हो, कितना भी हो, आपके ऊपर कोई ना कोई भार जरूर है, क्योंकि ये संसार है। आपके लिए मर्यादा तो आएगी ही आएगी। तो ये मर्यादा कहाँ नहीं आएगी? मर्यादा कहाँ नहीं आएगी? परमात्मा ने कहा जो वैरागी बन गए आप, अगर आपने दीक्षा ले ली और आप ये संसार से बाहर आ गए, तो अब आपके ऊपर ना कोई राजा की मर्यादा है, ना कुछ भी मर्यादा है। शालीभद्र ने भी देखा, जो श्रेणिक राजा मुझसे सवाल कर रहे हैं, वो श्रेणिक राजा परमात्मा के पास जाके समव शरण में हाथ जोड़ के बैठे। समझ में आ रहा है? ये बात शालीभद्र ने देखी, समझ में आई ये बात? हाँ, तो शालीभद्र को ये बात समझने के बाद उसको वैराग्य हुआ। वैराग्य तो हो गया। अब वो क्या कर रहा है कि रोज एक एक पत्नी का सहवास वो छोड़ रहा है, एक साथ नहीं छोड़ना चाहता है ना, एक साथ वो नहीं छोड़ना चाहता। वो रोज एक एक पत्नी का सहवास छोड़ रहा है और वो धीरे धीरे वो दीक्षा की तरफ जाएगा। वो बोल रहा है रोज मैं एक एक पत्नी का सहवास छोड़ूंगा, क्योंकि उस समय में तो ज़्यादा पत्नियां थी।
तो रोज ऐसा ऐसा सोच के उसने ये निर्णय किया कि अब इतने दिन के बाद आवाज़ आ रही है, आवाज़ ज़रा कहीं पे बंद कर दो माइक। मैं कुछ दिन के बाद वैराग्य ले रहा हूँ और मैं ये सारी चीज़ छोड़ के दीक्षा ले रहा हूँ। उसने ये बता दिया अपनी पत्नियों को। इसकी बहन धन्ना अणगार की पत्नी थी। उसको मालूम पड़ा कि भैया वैराग्य ले रहा है, भैया संसार छोड़ रहा है, भैया दीक्षा ले रहा है। अब यहाँ उसको ये पता चल गया है। एक दिन वो अपने पति को स्नान करा रही थी। तब के ज़माने में ऐसा था उस समय में कि पति को पत्नियाँ मालिश वालिश करके, तेल मर्दन करके, मालिश करके स्नान कराती थी। तो धन्ना अणगार की पत्नी उसको मालिश कर रही है, स्नान करा रही है। अचानक उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए और वो रोने लग गई। मालिश करते करते रोने लग रही है। तो मालिश करते करते उसके शरीर पे, उसकी आंखों से आंसू की बूंद धन्ना अणगार के हाथ के ऊपर गिरी। वो सोच रहा है मालिश यहाँ हो रहा है, ये हाथ के ऊपर पानी कहाँ से आया। तो उसने देखा कि पत्नी रो रही है। उसने पूछा अपनी पत्नी को कि क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो, आपको क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है, ये बताओ। तब उसने कहा कि भाई भैया मेरा वैराग्य ले रहा है, रोज़ एक एक पत्नी को छोड़ रहा है और अब वो दीक्षा ले लेगा और ये संसार छोड़ के चला जाए। तो धन्ना अणगार हंसे, मश्करी की, मजाक किया, अरे रोज़ क्या एक एक पत्नी को छोड़ रहा है, ताकत है तो सबको छोड़ के निकल जाए अगर लेना होगा तो। खाली बात कर रहा है, कोई नहीं लेने वाला। अगर जो उसको वैराग्य आया है तो एक साथ छोड़ के निकल जाए ना, एक एक पत्नी को क्या छोड़ना। ऐसे साले बहनों में मजाक होती रहती है ना। हाँ, उसने बोले एक एक पत्नी को क्या छोड़ना, अगर वैराग्य आया तो सबको छोड़ के निकल जाए ना। तब अब ये पत्नी ने टोना मारा, अरे मेरे भाई की बात कर रहे हो आप, ऐसे कैसे बोल रहे हो। उसने बोल दिया कि भाई उसमें तो वो तो रोज एक एक को छोड़ तो रहा है, आपकी तरह तो नहीं है। समझ में आया। उसने टोना मारा कि आपकी तरह तो नहीं है ना, वो रोज एक एक को छोड़ तो रहा है ना। छोड़ दिया जा, मैंने तुझको छोड़ दिया, सब रानी को छोड़ दिया। धन्ना अणगार खड़े हो गए, मालिश करते करते नहाते नहाते खड़े हो गए, कपड़े बदल दिए और निकले। और रास्ते में चलते चलते आ रहा है, अभी तो वो सारा छोड़ दिया ना, छोड़ दिया मैंने, अभी से ही वैराग्य छोड़ ले लिया, सारा घर बार संसार सब छोड़ दिया, आप सबको मैंने एक साथ छोड़ दिया। धन्ना अणगार सबको छोड़ के उतर गए, घर से बाहर निकल गए, सबको कह दिया मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। गए, घर से निकले, शालीभद्र के घर के महल के नीचे खड़े हो गए और आवाज़ दे रहे शालीभद्र शालीभद्र, जोर जोर से चिल्ला रहे। शालीभद्र आए, बाहर आए, क्या हुआ, बहनों ही है तो थोड़ा सा तो लगता है ना, अरे बहनों ही ऐसे कैसे चिल्ला रहे। बाहर आए और बोला अरे क्या रोज एक एक को छोड़ रहा है, आजा छोड़ के मैं जा रहा हूँ। समझ में आया। उसने शालीभद्र को कह दिया तू तेरे में हिम्मत है तो आजा छोड़ के, मैं भी छोड़ के आ गया हूँ, आजा। और शालीभद्र धन्ना ने दोनों ने उसी दिन दीक्षा ली। इसीलिए धन्ना अणगार का वखाण परमात्मा ने श्रेणिक राजा से भी किया कि तेरा धन्ना अणगार है, तेरे में जो इतना भाव वैरागी है। और जो भी उसने जो भी वखाण किया वो ये बात के लिए किया। और आपको ये पता होगा कि हम लिखते हैं दिवाली में शालीभद्र की रिद्धि हो, जो लिखते हैं ना, क्योंकि शालीभद्र को तो 99 पेटी मिलती थी, ऐसी उसके पास रिद्धि सिद्धि थी जो राजा के पास भी नहीं थी। और धन्ना अणगार का भी लिखते हैं, पता है, मालूम है किसी को। धन्ना अणगार की मति हो, नहीं, वैराग्य, धन्ना अणगार जैसा वैराग्य हो जो। वो वैराग्य मतलब कैसा वैराग्य, एक बीवी ने एक टोना क्या मार दिया, सब छोड़ के निकल गए। तो अंदर से वैराग्य होगा तभी ये हुआ ना। हाँ, वो भोगने के बाद भी अंदर से वैरागी थे। जैसे ही उन्होंने बोला कि ये एक एक को छोड़ रहा है, एक एक को क्या छोड़ रहा है, छोड़ देना, हिम्मत है सबको एक साथ छोड़ दे, एक एक को क्या छोड़ना है। तुरंत जैसे बीवी बोली कि अरे वो तो एक एक को छोड़ रहा है, आपकी तरह थोड़ी ना है, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो। तो छोड़ के खड़े हो गए, छोड़ दिया। अभी तू कह रही है मैंने सबको छोड़ दिया, चल। तो ये भी तो वैराग्य की एक भाषा है, छोड़ दो, एक सेकंड में छोड़ के आप निकल जाओ। इसीलिए तो उनके वैराग्य का बखान किया। अभय कुमार की बुद्धि हो जो, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप जो दिवाली में लिख रहे हो ना, वो सारी चीज का वखान परमात्मा के मुख से हुए।
एक मिनट, अभय कुमार में उतनी अक्ल थी, बहुत बुद्धि थी, और जैसे ही उनको, आपको ये पता है क्या हुआ था? अभय कुमार उसी भव में मोक्ष गए, मालूम है? आप जानते हो क्या कैसे? ये भी जानने जैसी बात है, पता है? नहीं तो मैं बताऊं? नहीं पता। हाँ तो सुनो, बताओ। सुनो, ये सुनने जैसी बात है। उनकी बुद्धि बहुत सतेज थी। श्रेणिक राजा का पुत्र है, लेकिन राजा हर एक बात की सलाह अभय कुमार से लेते थे, हर एक बात की सलाह अभय कुमार से लेते थे। अभय कुमार को एक बात मालूम पड़ गई, ऐसी ऐसी मालूम पड़ गई कि उनको ये पता चल गया कि ये उत्सर्विणी काल में अब कुछ समय के बाद परमात्मा तो चले जाएंगे, परमात्मा का तो निर्वाण हो गया होगा या हुआ होगा, होने वाला होगा, ये तो नहीं पता। नहीं, हुआ नहीं था, बराबर हुआ नहीं था। और कुछ ये परमात्मा के निर्वाण के बाद 89 पक्ष, खाली 89 पक्ष बाकी रहेगा, और ये अपना ये अशुभ काल शुरू हो जाएगा, 5वां आरा शुरू हो जाएगा। उसके बाद किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा, उनको ये मालूम पड़ गया था। और उनको कुछ भी करके इसीलिए पहले दीक्षा लेनी थी कि मैं परमात्मा के पास दीक्षा लूँ और जाऊँ, लेकिन श्रेणिक राजा ने बिल्कुल मना कर दिया था कि तू नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा जब तक मैं नहीं। बहुत समझाया अभय कुमार ने, श्रेणिक राजा को बहुत समझाया कि आप मुझे जाने दीजिए, क्योंकि बाद में मोक्ष बंद हो जाएगा, ये होगा नहीं, और मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे नहीं भटकना है, मुझे मोक्ष जाना ही जाना है, मुझे दीक्षा चाहिए ही चाहिए। और अंदर से वो भी वैरागी हो चुके थे, लेकिन श्रेणिक राजा ने कह दिया था कि जब तक मैं तुझे जाने के लिए ना बोलूँ तब तक तू कहीं नहीं जाएगा। देखिए, बात समझ में आ रही है? क्या बात हुई? श्रेणिक राजा ने ये कह दिया कि जब तक मैं तुझे बोलूँ कि तू चला जा, तू यहाँ से चला जा, तब तक ही तब तक तुझे मेरे पास ही रहना पड़ेगा। जिस दिन मैं बोलूँ कि तू यहाँ से चला जा, तभी तू जाएगा, और मैं तो कभी तुझे कहने वाला हूँ नहीं कि तू चला जा। बात समझ में आ रही है? श्रेणिक राजा ने भी क्या चाल किया। उन्होंने भी ये सोचा कि मैं तो उसको जाने के लिए बोलूँगा नहीं, तो उन्होंने एक कंडीशन दे दी, शर्त दे दी कि जब तक मैं बोलूँ कि तू यहाँ से चला जा तभी तू जाएगा, उससे पहले तू नहीं जाएगा। अब अभय कुमार की बुद्धि देखिए, उनको पता था कि श्रेणिक राजा अपने आप तो कहने वाले हैं नहीं, बराबर कहने वाले हैं नहीं। अचानक ये हुआ कि चेलना उनकी पत्नी है, श्रेणिक राजा की पत्नी है। अचानक ये हुआ कि रात को एक दिन चेलना ऐसे नींद में बड़बड़ाई कि अरे वो ठंड में उनको ठंडी लग रही होगी, वो ठंडी में बिल्कुल उनको ध्रुजारी लग रही होगी, उनको अभी इतनी रात में वो बाहर खड़े हैं, उनको ठंडी लग रही होगी, उनको ठंडी, वो नींद में इतनी बड़बड़ाई, ऐसी बड़बड़ाई कि श्रेणिक राजा को शंका गई। राजा अब रात में बीवी बाजू में सोई है और ऐसा बोल रही है कि भाई उनको तो ठंडी लग रही होगी, बहुत ठंडी है, उनके शरीर को पीड़ा होगी, उनको ठंडी लग रही होगी। तो श्रेणिक राजा सोच रहे हैं मैं तो यहाँ हूँ और रानी किसी और की बात कर रही है, मतलब जरूर इसका कोई ना कोई प्रियतम है, और वो उसी को याद करके नींद में बड़बड़ा रही। तो उसने वहाँ से उठ गए और उठ के उसने अभय को रातों रात बुलाया। बुलाने के बाद कह दिया कि तू चेलना रानी के महल को आग लगा दे। चेलना रानी मुझे नहीं चाहिए, आज के बाद तू उसके महल को आग लगा। अभय कुमार सोच रहा है कि राजा का हुक्म है, करना तो पड़ेगा। और राजा निकल गए महल से बाहर और चेलना के महल को मतलब जला दो, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आग लग गई। अब राजा को भी क्या था कि भाई ये आग लग गई है, ये पता चलना चाहिए कि ये आग लग गई है, पर राजा ने लगाई आग अपने आप लग गई और रानी जलकर मर गई तो अलग बात है, लेकिन रानी ऐसे किसी को याद कर रही है और मैंने सजा दी, ये राजा नहीं चाहते थे। बात समझ में आ रही है? हाँ, राजा चाहते थे कि आकस्मिक आग लगी और रानी मर गई, ऐसा सब लोग को पता चले। तो ऐसा हुआ, राजा बाहर अपने महल में आ गए और अभय कुमार ने भी रानी के महल को आग लगा दी। रानी का महल जल रहा है, बिल्कुल जल रहा है, आग से जल रहा है। और कुछ समय के बाद राजा का गुस्सा शांत हुआ। तब किसी वो
पहरेगीर थे, जो उसकी दरबान था वो आया, उसने बोला कि भाई आप राजा जी, आपको आपके रानी के महल से कुछ दासी आई हैं और वो आपको मिलना चाहती। तो उन्होंने बुलाया उनको, दासियाँ आई और उन्होंने ये बताया कि रात के समय में रानी ने हमको रात के पहले हमको कुछ कंबल दिए थे और वो कंबल देने के लिए हम बाहर निकले। बाहर के उद्यान में एक मुनिवर थे जो खड़े थे और ध्यान कर रहे थे। तो रानी ने हमको बोला था कि आप ये 2 कंबल ले जाओ और मुनिवर को दे दो, क्योंकि उनको ठंड लग रही होगी, वो ये ठंडी में खड़े होंगे और उनको लगेगा कि ये उनका शरीर बर्फ़ की तरह गल जाएगा। आप ये कंबल ले जाओ और मुनिवर को दे दो। तो हम तो गए देने के लिए, लेकिन मुनिवर ने मना कर दिया, इसलिए हम वापस आए। वापस आते ही हम रानी को ये बताने के लिए गए, लेकिन रानी का महल जल गया है। तो क्या रानी यहाँ है? हम उनसे मिलना चाहते। अब राजा को पता चला कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ये गलत कर दिया। रानी तो वही महल में थे, उनको पता थी। उन्होंने तुरंत अभय कुमार को बुलाया। अभय कुमार वहाँ वापस आ गए। अभय कुमार तुरंत राजा के सामने आ गए। राजा के सामने जैसे ही आए, राजा बिल्कुल गुस्से में है, क्योंकि बात तो कुछ और ही निकली। राजा ने तो कुछ सोचा ही नहीं था। तो राजा ने अभय कुमार को पूछा कि क्या हुआ, रानी कहाँ है? तो अभय कुमार ने तो कह दिया, आपने बोल दिया महल जला दो, मैंने जला दिया। तो कि रानी कहाँ है? तो रानी तो अंदर ही थी ना, आपने बोला ना कि रानी के साथ महल को जला दो। तो राजा एकदम गुस्से में आग बबूला हो रहे। राजा पूछ रहे कि अरे मैं तो गुस्से में था, तेरे में अक्ल थी कि नहीं? तुझे तो सोचना चाहिए कि रानी को कैसे मैं जलाऊं, तूने ऐसा क्यों किया? तो राजा अभय कुमार ने बोला, आपने बोल दिया, मैंने काम कर लिया, बस मुझे नहीं पता, मुझे तो आपने बोला, मैंने रानी को जला दिया। अब आप सोचो और रानी सोचो। अब राजा को और गुस्सा है, तू ऐसे कैसे जवाब दे सकता है, तू महामंत्री है। तो अभय कुमार भी और नफट से जवाब बोल रहे हैं, और नफट हो गए। मैं महामंत्री हूँ, लेकिन आप तो राजा हो, आपको नहीं समझ में आया क्या कि आप क्या आदेश दे रहे हो? आपको तो पता होना चाहिए कि आप अपनी पत्नी को जला के मारने की बात कर रहे हो। राजा को इतना गुस्सा है, तू जा यहाँ से, चला जा इधर से। उन्होंने कह दिया कि तू मेरी नज़रों के सामने से चला जा। अभय कुमार वहाँ से निकल गए। वो इंतज़ार में थे कि कब राजा ये शब्द बोले। सीधे भगवान के पास और सीधी दीक्षा ले ली, तुरंत दीक्षा ले ली। 1 घंटे बाद राजा को समझ में आया कि मैंने क्या बोल दिया। मैंने अभय कुमार को जाने के लिए बोल दिया कि तू चला जा यहाँ से, और तुरंत वो भगवान के पास गए। तो वहाँ रानी भी वहाँ मौजूद, अभय कुमार की दीक्षा हो चुकी थी और राजा जाके खड़े हैं। रानी वहाँ मौजूद थी। अभय कुमार ने तो रानी को बचा ही लिया था, रानी को बचा के उन्होंने छुपा लिया था। समझ में आई बात? अभय कुमार मौके का इंतजार कर रहे थे, कब राजा गुस्सा हो और मुझे बोले कि तू चला जा यहाँ से। अब बोलो अभय कुमार की बुद्धि कैसी थी? जबरदस्त। हाँ, चांस बस वो राह देख रहे थे। राजा कब बोला, राजा को गुस्सा आए तो राजा बोले ना कि तू जा यहाँ से, मेरे सामने से चले जा। तो इसीलिए दिवाली में लिखी जाती है, अभय कुमार की बुद्धि हो जो, धन्ना शालीभद्र की रिद्धि हो जो, धन्ना अणगार का वैराग्य हो जो। बराबर। और दूसरा अभी भी और, केसरिया दादा का भंडार भरपूर हो जो। ये खास लिखा जाता है। और शायद आपको नहीं पता हो कि आज अगर कोई तीर्थ की मालिकी की अगर प्रॉपर्टी अगर किसी के पास ज़्यादा होगी तो समझ लीजिएगा केसरिया जी दादा। पूरे आसपास के राजस्थान की खानों की मालिकी मंदिर की। उसके लिए केस भी लड़े, जीते भी मंदिर वाले गवर्नमेंट से। ये सब चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। इसीलिए केसरिया जी भंडार भरपूर हो जो। हर दिवाली के दिन जब आप चौपड़ा पूजन लिखते हो, हर कोई ये शब्द लिखते, हर कोई ये लिखता है। अब हर कोई लिखेगा, आप सोच सकते हो। हर एक जैन व्यक्ति अगर ये लिखे कि केसरिया जी दादा का भंडार भरपूर हो जो, आप लिख रहे हो, तो समझ में आ रहा है कि आप लिखकर आप कुदरत को क्या मैसेज दे रहे हो। इतने सारे लोग ये लिखेंगे तो अपने आप केसरिया जी का भंडार खाली होगा नहीं। बोलो होगा क्या? बताओ। नहीं, होगा ही नहीं, अपने आप वो भरपूर रहेगा।
जब इतने सारे लोग, इसीलिए ऐसा है ना, ये सब जो लिखना होता है ना दिवाली के दिन, ये चौपड़ा पूजन में ये जरूर लिखना होता है, ये जरूर लिखना होगा, क्योंकि केसरिया जी का भंडार भरपूर हो, धन्ना अणगार की का वैराग्य मिले, शालीभद्र जैसी रिद्धि मिले, तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। और हर कोई लिखेगा, क्योंकि ये सारी व्यक्ति अभय कुमार की बुद्धि, ये आपको हमेशा हर एक जन्म में, अगर आपने ये जन्म में 100 साल, अगर 50 साल जिए और 50 बार लिखा है ना, तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। मिलेगी कि नहीं बताओ? मिलेगी। और किसी जन्म में धन्ना अणगार जैसा वैराग्य भी मिलेगा कि नहीं? हाँ, तो ये बहुत काम की चीज होती है, ये सब भी, लिखना भी, लिखना सोचना सब। आओ, अब भगवान गौतम स्वामी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि श्रेष्ठी, निर्धन, रंक और राजा, ठीक है, 4 चीज, श्रेष्ठी, निर्धन, रंक और राजा, ये चारों क्या अप्रत्याख्यानीय क्रिया समान होती है सबकी? अप्रत्याख्यान क्रिया ये चारों की समान होती है? भगवान कह रहे हैं हाँ, ये चारों की एक समान होती। सुनो कैसे, किस अपेक्षा से? तो चारों के चारों अविरती है। कैसे हैं चारों? अविरती सम्यक दृष्टि है चारों। सम्यक दृष्टि है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अविरती तो पक्के है ना। श्रेष्ठी अविरती है, निर्धन भी अविरती है, रंक भी है वो भी अविरती है, और राजा है वो भी अविरती। अविरती तो है नहीं, राजा को विरती होती तो कहीं से वो दंड नहीं लेना है, किसी को दंड नहीं देना, किसी को मृत्यु दंड नहीं देना, इस सब से तो राजा बच ही नहीं पाएगा। बच पाएगा बताओ? नहीं तो फिर वो वीरती तो ले ही नहीं सकता ना, कि मैं किसी को मारूंगा नहीं, ये ले सकेगा बताओ? नहीं, वो ले ही नहीं पाएगा। उसके बाद रंक, गरीब की बात, गरीब भी कोई लिमिट तो रखेगा नहीं, जहां से जैसे ही मिला पैसा वो काम करेगा ना। जो काम मिला, घर परिवार का भरण पोषण करना है। रंक तो मांग के खा रहा है, अच्छा रंक है ये तो, निर्धन भी नहीं, ये रंक है। निर्धन और रंक में फर्क है। रंक यानी कि गरीब, भिखारी, भीख मांग के खाने वाला। रंक का मतलब ही होता है भीख मांग के खाने वाला। तो उसको तो बार बार लोगों से ही लिया हुआ खाना खाना है, तो उसको कोई चॉइस मिलेगी क्या? नहीं, कि मैं ये खाऊं, मैं ये ना खाऊं, मैं ये मिले तो ही खाऊं। वो जाके किसी को मांगेगा तो ये बोलेगा कि भाई मैं ये आप आलू की सब्जी दे रहे हो, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा वो बोल सकता है? नहीं बोल सकता। जो मिला वो उसको खाना है। और रही बात निर्धन की, तो निर्धन भी धन कमाना तो उसको पड़ेगा ही पड़ेगा, तो वो भी वीरती नहीं ले सकता है ना, अपने आप को लिमिट में नहीं रख सकता। और श्रेष्ठी तो धनी कमा रहा है, तो क्या उसके लिए उसने कोई बंधन रखा है कि इतना पैसा मिल गया बस, इससे ज्यादा नहीं कमाना है? हाँ नहीं, व्यापारी है वो कर भी नहीं सकता। देश विदेश जहाज में उसको, उस समय की बात है, तब तो देश विदेश जहाज में ही, पानी में ही भेजना पड़ता था। तो पानी में जहाज में आप भेजोगे तो कितना पैसा, कितना पाप लगेगा सोचो। या पानी से जाता था, या फिर गधे और ऊंट और उसकी सवारी से जाता था। तो इनको तो कोई वो नीलांचन, दवदान, ये सारे कर्म लगते थे कि नहीं लगते थे? लगते थे। इसीलिए ये चारों की बात है, इनकी चारों की अप्रत्याख्यान क्रिया एक समान होती है। क्यों? क्योंकि चारों के चारों अविरती है, और अप्रत्याख्यान क्रिया, अविरती की क्रिया हमेशा अप्रत्याख्यान होती है। आपको ये भी समझना है। अविरती जीव होगा जिसने विरती नहीं ली है, जिसने श्रावक के 11 व्रत का नहीं समझ में उसको आया है, 12 व्रत और 11 पड़ी माँ का स्वीकार उसने नहीं किया है, तो समझ लीजिएगा कि ये जीव वीरती वाला नहीं है। सम्यक दृष्टि या सम्यक दृष्टि भी नहीं है और वीरती वाला भी नहीं। सम्यक दृष्टि अभी भी अवीरती हो सकता है, अवीरती सम्यक दृष्टि हो सकता है। अवीरती सम्यक दृष्टि वो चौथा गुण स्थान। लेकिन अगर जो सम्यक दृष्टि भी नहीं और खाली अवीरती है, उसको तो कोई बंधन ही नहीं है ना, उसके तो बहुत सारे भोग भ्रमणा बाकी रहेगी।
तो उनकी तो अप्रत्याख्यानीय क्रिया होगी ना, कि प्रत्याख्यान तो पॉसिबल ही नहीं है, बराबर। बराबर। हाँ, या अप्रत्याख्यानी होगी या वो अनंतानुबंधी होगी। आपको ये समझना पड़ेगा अप्रत्याख्यान किसकी हो सकती है और अनंतानुबंधी किसकी हो सकती है। जो मिथ्यात्वी है उनकी तो मिथ्यात्वी को तो अविरति शब्द ही नहीं लगेगा। लगेगा बताओ, अविरति किसको लगेगा, सम्यक दृष्टि को या मिथ्यात्वी को? बहुत क्लियर हो रहा है, बहुत छोटी छोटी बात है, ध्यान से बताओ। अविरति शब्द किसको लगेगा, मिथ्यात्वी को या सम्यक दृष्टि को? सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि को। मिथ्यात्वी को लग सकती है? नहीं। क्यों? प्रत्याख्यानी मिथ्यात्व में वीरति शब्द ही नहीं आना है, तो वीरति ही नहीं आना है तो अवीरति तो आने का संभव ही नहीं है ना। नहीं। वीरति आए और चली जाए तो अवीरति सम्यक दृष्टि। जिसकी वीरति आई और चली गई, देखो अवीरति सम्यक दृष्टि चौथा गुण ठाना है। कौन सा है? चौथा। और मिथ्यात्वी तो पहले से ही बाहर नहीं आ रहा है। हाँ। तो मिथ्यात्वी तो कभी अवीरति हो ही नहीं सकता। अब समझ में आ रहा है? हाँ। अवीरति सम्यक दृष्टि गुणठान है चौथा और मिथ्यात्व गुणठान है पहला। तो पहला गुणठाना चौथे गुणठाने तक तो जा ही नहीं पाएगा ना। नहीं। इसीलिए मिथ्यात्व के पहले गुणठाना मिथ्यात्व है, दूसरा सास्वादन है, तीसरा मिश्र है। तो पहले गुणठाना वाला दूसरे सास्वादन में भी जाएगा। क्यों? कब जाएगा? जब उसको थोड़ी एक बार भी सम्यक दृष्टि लगी और निकल गई तो वो सास्वादन है। नहीं तो मिथ्यात्वी तो अवीरति होने का तो संभव ही नहीं है। नहीं। हाँ, आओ। इसीलिए मिथ्यात्वी हमेशा या अप्रत्याख्यानी में हो या अनंतानुबंधी में हो। मिश्र होगा, सास्वादन हुआ होगा तो अप्रत्याख्यानी आ सकते हो, लेकिन अगर खाली मिथ्यात्वी हो तो अनंतानु के बगैर हो ही नहीं सकता है कुछ भी। आपके चारों कषाय या 16 के 16 कषाय अनंतानु के कैटेगरी में आएंगे। चलो अभी आगे जाएंगे। सास्वादन यानी एक बार सम्यक दृष्टि आए और आप उसको वापस मिथ्यात्व में चले जाओ तो आप कुछ समय के लिए सास्वादन में रहोगे। सास्वादन का मतलब देखिए, ध्यान से सुनिए। एक बार आपने खीर खाई हुई है आप, या फिर कढ़ी चावल कुछ भी खाया है और खाने के बाद आपको सारा वॉमिट हो रहा है तुरंत। आप खा तो लिया, वॉमिट हो रही है, तो वॉमिट में भी वो खीर का स्वाद आएगा कि नहीं? आएगा ना। जो खाया है उसी का स्वाद आएगा ना वॉमिट में। हाँ, तो अंदर स्वाद रह गया, वमने के बाद भी स्वाद रह गया है, इसीलिए उसको बोला जाता है सास्वादन, क्योंकि उसमें थोड़ा भी स्वाद। पलंग पे पीले रंग का। तो अप्रत्याख्यान क्रिया को ही हमें समझना है। अप्रत्याख्यान क्रिया ऐसे सास्वादन गुण ठाने वाले को भी होगी। क्यों? समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। उसको एक बार सम्यक आया है और चला गया है, राइट? हेलो, राइट। हाँ, तो अब सम्यक दर्शन आके चला गया तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि ये भव्य जीव है, ये कभी भी मोक्ष जा सकता है। हाँ, तो अब ये इसीलिए अब ये सास्वादन गुण स्थान पे जीव कुछ ही समय तक रह सकता है, खाली अंतर्मुख, उससे ज्यादा नहीं। बराबर? आपको वो स्वाद भी कुछ समय के लिए ही रहता है ना, उसके बाद तो मुंह और कड़वा हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा। वॉमिट हो जाएगी। खीर खाई है तो कुछ समय तक वो वॉमिट में उस खीर का स्वाद रहेगा, उसके बाद तो मुंह कड़वा ही होना है किसी का भी। हाँ, अब तो वो मिश्र पे जाए, मिश्र पे ज़्यादा समय भी नहीं रहेगा, तो मिश्र से या तो वो अवीरति पे जाएगा, नहीं तो फिर वापस मिथ्यात्व पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सास्वादन पे भी ज़्यादा समय नहीं रहेगा, है ना। मिश्र में वो लंबे समय तक रह सकता है। मिश्र मतलब नहीं वो समकिति है, नहीं वो मिथ्यात्वी है, तो ये अवृत्ति सम्यक दृष्टि वहीं पे जाएगा ना, हाँ। है ना।
तो मिश्र में तो मिथ्यात्व भी है, कभी मिथ्यात्व का प्रबल हो जाता है, कभी वो प्रबल हो जाता है, लेकिन देश वृत्ति अब उसके बाद आएगा अवृत्ति सम्यक दृष्टि, उसके बाद आएगा देश वृत्ति। देश वृत्ति मतलब आपने कुछ ऐसे नियम लिए हैं जो श्रावक के योग्य हैं और आप उसका चुस्तता से पालन कर रहे हो, तो उसका मतलब आप देश वृत्ति हुए, थोड़े वृत्ति हुए, आप अवृत्ति नहीं हो। थोड़े वृत्ति हो गए तो आप अवृत्ति से बाहर आ गए, समझ में आया? अब अवृत्ति हुए हो तो आप सीधे प्रत्याख्यानीय कषाय पे आ गए। तो अब क्लियर करो, देखो अनंतानुबंधी पहले मिश्र पे होगा, मिथ्यात्व पे होगा पहले, अप्रत्याख्यानीय कब होगा? तो मिश्र और अवृत्ति गुण स्थान, बराबर। अवृत्ति के बाद देश वृत्ति में तो प्रत्याख्यानीय में आ गए आप। हाँ, क्लियर हुआ? हाँ हाँ, चलो। तो जैसे आपके कषाय, जैसे आपके राग द्वेष, उस हिसाब से आपकी कैटेगरी होगी। अब नया है आधा कर्म पद। आगे का जो टॉपिक है उसका नाम है आधा कर्म पद। आधा कर्म भोजन जो हमने कल देखे थे, आधा कर्म भोजन का अर्थ है जो बिल्कुल कर्म बंध से भरा हुआ हो या फिर अशुभ कर्म से ये पड़ा हुआ हो। ये ऐसे आधा कर्म भोजन करने के बाद आप जो श्रवण निर्ग्रंथ भी है ना, अगर आपके घर में उसने आधा कर्म भोजन किया आपका, तो श्रवण निर्ग्रंथ भी आयुष्य कर्म को खाली छोड़ो, बाकी की सातों प्रकृतियों को वो गाढ़ बांधता है, गाढ़। समझ में आया? वो गाढ़ बांध देता है। तो आधा कर्म भोजन का अर्थ ही है कि वो राग से भोजन करे, वो द्वेष से भोजन करे, वो अपना अलग से मंगवा के भोजन करे, अलग से जो गोचरी के 42 दोष वाला है वो भोजन, वो हुआ आधा कर्म भोजन। तो आधा कर्म भोजन करके श्रवण निर्ग्रंथ भी सातों कर्म प्रकृतियों को दीर्घकालिक स्थिति वाला करता है। मतलब ये है कि आप वैराग्य में तो आ गए, लेकिन कहीं भी आपकी रुचि रह गई, भोजन में रह गई या विषय में राग में रह गई, जैसे वो लक्ष्मणा साध्वी जी की बात थी, चकाचकी को राग करते हुए देखकर उनके मन में भी राग जागा, बस उन्होंने प्रायश्चित नहीं किया। उसका प्रायश्चित करना जरूरी था, वो उन्होंने नहीं किया। राग आना तो स्वाभाविक है, इसलिए आपको एक बात समझनी है, अगर आपके मन में राग आ जाए या किसी ऐसी व्यक्ति को चकाचकी को मैथुन करते हुए आपको भी मैथुन के ख्याल आ जाए, तो आप उसका प्रायश्चित करो। ख्याल आना स्वाभाविक है, अंदर कर्म पड़ा होगा तो होगा ही होगा। आप एक बात तो समझ में क्लियर हो गई होगी, सबको हुई कि नहीं? जवाब दीजिए। अंदर अगर कर्म पड़ा है तो आप वो स्थिति में जाओगे ही जाओगे। ये बात क्लियर हुई? अंदर कर्म पड़ा है सत्ता में, उदय में, वो उदय आवलिका में वो कर्म आया है, और आपने किसी से ये या कोई वीडियो देखा या कोई आवाज़ सुनी या किसी के आवाज़ के प्रति आकर्षण हुआ या कुछ भी हुआ, आपको अंदर से भी विषय राग की इच्छा हुई, तो ऐसा समझ लीजिए कि अंदर पड़ा है इसीलिए हुई है। ये बात सही है कि गलत है? बताओ। सही है। सही है, अंदर पड़ा है इसलिए हुए। तो पड़ा है, हुआ वो विषय भोग भी हुआ, तो आप उसके बाद भी उसका प्रायश्चित करो। कर सकते हो कि नहीं? बताओ। कर सकते हैं। ये कर इसलिए रोज प्रतिक्रमण में ये बात बताई है ना, रोज का प्रतिक्रमण क्यों कहा है कि रात की जो क्रिया हुई है उसका सुबह प्रतिक्रमण करो, सुबह की जो क्रिया हुई है उसका रात में प्रतिक्रमण। कुछ नहीं कर सकते हो, हाथ जोड़ के इरिया वही कर लो। इरिया वही में भी है कि नहीं? बोलो। है, सब चीज है, सब चीज है। 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख आपका है, रोज आपको बोलना है, आप वो बोल दो। पूरा वंदितु प्रायश्चित है। पाप हो जाए तो वो कर्म के अधीन हो आप, इसलिए होगा ही होगा। हो जाए मत सोचो, वो होगा ही होगा। आप कर्म के अधीन हो, कर्म का उदय होगा तो आपको वो स्थिति से निकलना ही पड़ेगा। पर प्रायश्चित तो कर्म के अधीन नहीं है ना, नहीं, वो आपके हाथ में। मेरे से ये हो गया है, भगवान माफ कीजिए, भगवान आप मुझे क्षमा कर, आप मुझे ऐसी स्थिति देना कि ताकि ये कर्म के उदय बाद में आए ही ना। आपको कर्म का उदय ना आए वो मांगना है, आपको वो कर्म नहीं करना है, उसको दबाना नहीं है।
उसको दबा दिया, वो कर्म नहीं किया या दबा दिया या फिर और गलत किया, गलत भी तो होगा ना उससे, बताओ। जितना दबेगा उतना डबल नहीं जागेगा। जागेगा। चल, तो आधा कर्म भोजन करते हुए आयुष्य कर्म को छोड़ के से 7 प्रकार के कर्म बंद होता है। क्यों? आधा कर्म भोजन का अर्थ क्या है? तो ऐसा भोजन जिसमें ना पृथ्वी काय की जैना हो, ना अप काय की जैना हो, ना तेजस काय की जैना हो, ना ही वायु काय की जैना हो, ना ही वनस्पति काय की भी जैना हो, और ना ही त्रस काय की भी जैना हो। क्लियर हुआ? हाँ, पृथ्वी काय की भी जैना नहीं, किसी की जैना ना हो। અપકાય की બી ના હો, કાચું પાણી વાપર્યું હોય અથવા એવી રીતે પાણી અપકાય કરતાં બી ઉપરથી પેલા બરફને કરા અંદર પડેલા હોય ભોજનમાં, હોય ને એવું? કોઈ જીવોની જયણા ના થઈ હોય, સમજાય છે? और प्रासुक और ऐषणीय भोजन, मतलब कि ये सारी चीज़ के आप जैना रखो, पृथ्वी अप तेऊ वायु वनस्पति काय सबकी त्रस काय सबकी जैना किया हुआ भोजन हो तो वो प्रासुक और ऐषणीय भोजन कहा जाता है। ऐसा भोजन करने वाला श्रमण निर्ग्रंथ क्या चय करता है, क्या उपचय करता है? तो वो जो 7 प्रकृति है जो दीर्घकालिक है उसको वो अल्पकालिक स्थिति करता है। वो बहुत अच्छे से अपने कर्मों का घटाने का कार्य अच्छे से कर पाता है, बराबर। और ऐसे धीरे 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 वो कम करते जाएगा। आयुष्य कर्म का बंध भी उसका नहीं होगा, असता वेदनीय का उदय भी वो नहीं होगा, उसका उपचय भी वो ज़्यादा नहीं करेगा। और अंत आदि अंतहीन वाले इस 4 गति संसार कांतार का वो व्यतिक्रमण करेगा। व्यतिक्रमण करेगा मतलब वो सारी प्रकृतियों को ढीली करता जाएगा और मोक्ष प्राप्ति करेगा। खाली भोजन से इतना होता है, आप समझ रहे हो? खाली भोजन से इतना फर्क पड़ जाता है, बोलो क्यों? क्योंकि विचार पण छे ना? नहीं, खाली भोजन, इसका अर्थ समझना है आपको। अब जैसे साधु भगवंत कैसे भोजन करते हैं, गोचरी के 42 दोष रहित, ऐसा भोजन अगर एक श्रावक भी करेगा ना तो भी आपको पता है कितने श्रावकों को केवल ज्ञान हुआ है? हाँ, तो उनका कारण ही ये है कि वो बिल्कुल निर्दोष आहार करे। आहार ही है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आहार। देखो आहार में क्या है, आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलो, आहार में क्या है कि जो साधु भगवंत है उन्होंने अपनी इच्छा से तो आहार बनाया ही नहीं है कि आज मेरा ये खाने का मन है तो ये भोजन बनाओ। मतलब क्या हो रहा है पता है? आप अपनी मर्जी से खाना बनवाओ और खाओ ना तो सारे दोष लग जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी इच्छा बताई और आपने ये खाना खाया, बराबर। और आप जो गोचरी में जा रहे हो, सभी को दीक्षा लेने के बाद गोचरी लेनी है, क्योंकि जो भोजन जैसा मिला वैसा खाना है। जैसा मिला वैसा खाया मतलब स्वाद तो बिल्कुल निकल गया, इंद्रिय जो आपके स्वाद इंद्रिय की लोलुपता है वो तो खत्म हो गई। और गोचरी में सारी चीज मिक्स करके खा रहे हो तो ऐसे भी स्वाद की लोलुपता खत्म हो गई। हाँ, तो मतलब क्या हो रहा है पता है? दोष कहाँ लग रहा है? जब आप अपनी इच्छा से खाओ पियो तो ही दोष में बंधोगे। ऐसे ही घर में भी बैठे बैठे जो मिल गया खा लिया, जैसा मिला खा लिया। आपको दोष रहित खाना है। आप महात्मा आपके घर आएंगे ना तो पूछेंगे कि चम्मच कैसे लिया, कैसे उठाया। आप गोचरी करते करते लाइट बंद मत करो, पानी में हाथ ना धुओ, ये सब बोलते कि नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि वोरते भी उनको कोई आधा कर्म का दोष नहीं लगना चाहिए, कोई भी अपकाय की भी हड़ना नहीं होनी चाहिए, बोलेंगे ना?
आप अगर गोचरी महाराज आए और वोरते वोरते पंखा बंद करोगे तो तेजस काय की हणना होगी कि नहीं? होगी। पानी में बार बार चम्मच धुओगे, हाथ धुओगे, कच्चा पानी लोगे तो अब काय की हणना होगी ना? होगी। इसलिए वो उनको नहीं चलेगा। इसलिए वो प्रासुक और ऐसणीय आहार कब होगा? प्रासुक और ऐसणीय मतलब खाने योग्य, कोई भी जीव की हणना के हुए बगैर निर्दोष आहार, निर्दोष गोचरी वापर ली तो कितना भी पेट भर के खाएंगे ना, उनको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उनके लिए तो ये बना ही नहीं है। उनकी मर्जी तो उसमें जुड़ी ही नहीं है। बोलो, जुड़ी है क्या? नहीं जुड़ी है। नहीं जुड़ी है। तो हमको भी, अब कल से हमको घर में भी ऐसा ही आहार खाना चाहिए। कैसा खाना चाहिए? निर्दोष, मांग के बनाया हुआ नहीं, कच्चा पक्का नहीं, आधा अधूरा नहीं, है ना? जितने कम जीव मरे वैसा आहार। वो आप ऐसा खा सकते हो, जो बना है खाओ, कोई पूछना है, जो मर्जी जो करना है बना दो। आप ये तो आप कह सकते हो ना। आप अपनी मर्जी का आहार बनाना छोड़ दो ना, तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा। जो मिला खा लिया होगा। बस कुछ जैन चाहिए, जो मन चाहे बनाओ, बस मुझे मेरे हिसाब का चाहिए। बाकी जो बना है, जो है वो बना के दे दो। आप ऐसा तो कह सकते हो। बहुत फर्क पड़ जाता है उससे। पड़ेगा ना? हाँ, मर्जी निकल जाए बहुत जरूरी है। मन आपका काबू में हो जाए। मनोयोग को बंद करना है, इतना सोचो। हर एक जगह मनोयोग को बंद करना है। क्या करोगे आप? उसको ताला मारोगे। किसको ताला मारोगे? मनोयोग को, इच्छाओं को, मनोयोग को। इच्छा बंद करोगे, अपने आप मन हो जाएगा। मन योग बंद हो जाएगा बस, अपने आप। अपेक्षावान नहीं होना है। देखो यहाँ भी ध्यान से सुनो कि पृथ्वी का एक यावत रस का एक जीवों के प्रति अपेक्षावान हो जाता है, निरपेक्ष नहीं हो पाता है। वह जिन जीवों के शरीरों का भोजन करता है उन जीवों के प्रति भी अपेक्षावान हो जाता है। आप जो जीव के शरीरों का भोजन करोगे, आप बोलोगे आज मेरे को खीर खानी है, मेरे को तो मीठा चाहिए, आज कुछ भी मीठा खाना है, या खीर बनाओ क्या रसगुल्ला बनाओ, तो सारे दूध के जीवों के प्रति आप अपेक्षावान हो गए। हो गए सारे दूध के जीवों के प्रति। अपकाय के जो दूध है, अपकाय के जीवों के प्रति आप अपेक्षावान हो गए। आज मुझे कुछ भी करके भोजन में अपकाय के जीव, दूध के जीव मिलने चाहिए, तो आप अपेक्षावान हो गए दूध के जीवों के। तो दोष लगेगा कि नहीं? लगेगा। आप बोलोगे नहीं, मुझे आज तो मेरी पसंदीदा सब्जी चाहिए, आज मुझे भिंडी की सब्जी चाहिए, आज मुझे करेले की सब्जी चाहिए, तो आप एकेंद्रिय वनस्पति काय के प्रति हो गए ना अपेक्षावान। ऊपर से बड़े चाव से खाओगे। अगर नहीं बनाई है तो गुस्सा करके खाओगे। तो अपेक्षावान होने से ही सब चीज होगा। राग भी अपेक्षावान होने से और द्वेष भी अपेक्षावान होने से। खाली अपेक्षा नहीं करनी है, कोई कांक्षा मोनीय नहीं लगेगा। कोई इच्छा मत करो, जो मिला है आओ, गोचरी लेने आए हो ऐसे ही किचन में जाओ, बोलो कि जो बना है वो खाना दे दो। आनंद श्रावक, कामदेव श्रावक, जो 10 श्रावक को अवधि ज्ञान हुआ है ना, वो लोग ऐसे ही करते थे। अपनी एक शाला बना दी थी उन्होंने, वो शाला में रहते थे और जाके अपने ही घर के किचन में जाते थे और जो भोजन बनाए वो भोजन करके वापस बाकी का समय धर्म ध्यान में कर लेते थे। समझ में आया? एक मिनट। तो ये आहार की बात है, भोजन की बात है। 10 श्रावक, कामदेव श्रावक, आनंद श्रावक जैसे 10 श्रावक को अवधि ज्ञान हुआ है। उन्होंने अपने कर्मों को इतना शिथिल कर दिया कि उनको उसी भव में श्रावक पड़े में अवधि ज्ञान हो गया। और वो अपने ही घर में, अपनी ही शाला में रहते थे, अलग एक कमरे में रहते थे। उन्होंने सब काम व्यवहार, सब व्यापार सब छोड़ दिया और घर में जाके वो प्राशुक और ये ऐषणीय आहार करते थे। तो आपको भी ये शब्द पे ही भार देना है, जो बना है वो खाना है।
अपनी मर्जी उसमें से निकाल देना है। मेरी बात समझ में आ रही है? आई एम बिल करोगे, जाके ये नहीं बना है, मुझे ये चाहिए, आप अभी बना के दो। समझ लीजिएगा, आपके अंदर ये अभी जो शब्द आया था ना, आप अपेक्षावान आहार अगर आपने कर लिया ना, तो आपको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। समझ में आ रही है मेरी बात? हेलो, आवाज सुन रहे हो मेरी? सब हो? चलो, तो प्राशुक और ऐषणीय आहार के पीछे का ये लॉजिक है। परमात्मा ने ये समझाया है कि बिना कांक्षा किया हुआ अपेक्षा रहित आहार। समझ में आ रहा है क्या? दोष आपको लग रहा है, आपने मांग के खाया, दोष आपको लग रहा है। आपने अपनी इच्छा से खाया, दोष आपको लग रहा है, अपेक्षा का दोष लग रहा है। और अपेक्षा का दोष ही मोहनीय कर्म है। समझ में आ रहा है? ये खाने के प्रति का भी मोह हमारा नहीं छूट रहा है। आज ये खाना है तो यही खाना है, ऐसा खाना है तो ऐसा ही खाना है। आई एम बिल में आज मेरे को पतेवड़ी चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। बोलो, कांक्षा मोहनीय हुआ कि नहीं हुआ? आप सब कुछ छोड़ सकते हो, इच्छा नहीं छोड़ सकते हो। इच्छा इसीलिए नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि आपसे उसका साथ छूट नहीं रहा है ना? हाँ, तो ऐसा छोड़ो। आप श्रावक पढ़े में भी ऐसा आ जाओ। बहुत सारे श्रावकों का हमने ये एग्जाम्पल देखा भी है, जाना भी है और सुना भी है कि आप अपनी मर्जी निकाल दो। बस हर एक क्रिया बिना मर्जी की शुरू कर लो। इतनी जल्दी आपके ऊपर से सातों कर्म, आयुष्य कर्मों को छोड़ के बाकी के सातों कर्म इतने जल्दी शिथिल होते जाएंगे ना, आप अपने आप को फील करोगे, हल्का महसूस करोगे। इतना हल्का महसूस करोगे, रोग निकल जाएंगे, आतंक निकल जाएगा, भय निकल जाएगा, डर निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। क्योंकि आपकी सातों जो कर्म प्रकृति है वो शिथिल होती जाएगी। समझ में आ रहा है? बोलो, कोई प्रश्न है आपके मन में? बोलो। आप दीक्षा लो और 42 दोष रहित गोचरी करो, उसका इंतजार करना है क्या? नहीं, उसका इंतजार नहीं करना है। उसका इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। जो मिल गया उसी के अंदर खुश हो जाओ। उसमें भी लिमिट कर लो, उसमें भी लिमिट कर लो। आज 8 चीज बनी है, मेरे को 3-4 बहुत हो गया, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। उसमें भी लिमिट हो गया। नहीं चाहिए आदत लगानी। क्या लगानी है हमको? आदत नहीं लगानी। नहीं चाहिए कि आदत लगानी है। नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए कि आदत लगेगी तो अपने आप चलेगा, उसकी आदत लग जाएगी, लगेगी ना? हाँ, नहीं चाहिए हमको, ये नहीं चाहिए, जो है वो चलेगा। ये नहीं चाहिए, जो है वो चलेगा। बराबर? बराबर। हाँ, नहीं चाहिए कि आदत से ही आपको आदत आएगी कि भाई मुझे ये है वो चलेगा, कोई बात नहीं, अच्छा है चलेगा, बस है, बस चलेगा, ऐसी आदत आ जाएगी, है ना? हाँ, हाँ, ठीक है। चलो, तो ये है बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका जो परमात्मा ने हमको समझाया है। आपको अगर अपने सातों कर्म को शिथिल करना हो, सातों शिथिल हो सकता है आयु छोड़ के, क्योंकि आयु तो जो बंधी है उसको भोगनी ही पड़ेगी, उसको तो जाके उधर भोगनी ही पड़ेगी, वो आप उसको शिथिल नहीं कर सकते। लेकिन बाकी सातों कर्म प्रकृतियों को शिथिल कर सकते हो, और वो भी सिर्फ अपेक्षावान छोड़ के। अपेक्षा छोड़ दो आप, आपके सातों कर्म शिथिल होते जाएंगे। आपको चाबी मिल गई है खजाने की। सब खोलो जरा माइक। आज के जैसा एपिसोड आज तक कोई नहीं हुआ है। हुआ है क्या बताओ? हाँ, नहीं, नहीं, आज के जैसा आज तक कोई एपिसोड हुआ नहीं है। आपको चाबी मिल गई है खजाने की।
आप अपने कर्म को कैसे घटा सकते हो? इच्छा छो, जो मिल गया जैसा मिल गया एक्सेप्ट कर लो, बस खुश होके करो, खुश होके चलेगा, बस हो गया ना, बहुत हो गया, पेट भर गया ना, बहुत हो गया। कैसे करोगे आप बताओ? आज के बाद किसी के भी अंदर आपकी कोई इच्छा नहीं रहेगी। जो सामने आ गया, जैसा मिल गया, किसी ने बोला ये करो, आपको करना है, ठीक है कर लेंगे, उसमें भी नहीं, उसमें भी मना है नहीं, उसमें भी आप मना ही नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? घर वाले आके बोले कि आज आपको ये त्योहार है, आज पार्टी में जाना है, आज आप ऐसे तैयार हो जाओ, आप हो जाओगे, आप हो जाओगे कि नहीं? हाँ या ना? उसमें भी मनाही नहीं करनी, उसके लिए भी मनाही नहीं करनी। नहीं मैं ये नहीं करूँगी, नहीं मुझे तो ये नियम है, मुझे तो ये बंधन है, मैं आज नहीं, आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा मूड नहीं, आज मुझे यहाँ जाना है, कुछ नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं, कोई अपेक्षा नहीं चलेगा। संसार से अब कोई अपेक्षा नहीं करनी है, और जो कर्म उदय में सामने आए उसको शांति से भोग के खत्म करना है। आपको अब 2 काम करना है। क्या क्या करना है बोलो? संसार मैं बोली वो पूरा बोलो। क्या 2 कर्म करोगे? पूरा बोलो, समझ में नहीं आया लग रहा है, मैं फिर से बताऊं? हाँ फरीથી बताओ, હું બાલકી કરું છું। जो चीज सामने से कोई कह रहा है वैसा करो, क्योंकि वो आपके कर्म का हिस्सा है कि नहीं? है कि नहीं बोलो? वो है, वो आपके कर्म का हिस्सा है। और दूसरा, आपको जो किसी ने करने के लिए बोला उसमें आप कोई ऑप्शन नहीं दोगे, कोई ऑप्शन नहीं। जिसने किसी ने बोला आपको ये करना है, आपके घर वालों ने बोला ये आपको करना है, हाँ ठीक है मैं कर लूँगी, आज नहीं कल देखेंगे, आज मेरा मूड नहीं है, आज मुझे ये नहीं खाना है, ऐसा कोई ऑप्शन आप नहीं करोगे। हाँ या ना? कोई नहीं करोगे, राइट? हाँ, ડગલે ને પગલે થઈ જાય છે, નથી કરવાનું, બસ એ સમજો। આ જ સમજવાનું છે કે મારી અંદરની અપેક્ષાઓ હવે ખતમ થવી જ જોઈએ, બસ। મને આ જોઈએ છે, મને આ ગમે છે, હવે મને નહીં જોઈએ। આ તમારે કરવું પડશે, નક્કી કરવું પડશે, એ પ્રમાણે વ્યવહાર બી કરવો પડશે। ખાવાની બાબતમાં જ્યારે પરમાત્મા આપણને આવું આટલું રિસ્ટ્રિક્શન કહેતા હોય તો પહેરવા ઓઢવાના શોખ તો ભૂલી જ જવાના છે, બોલો હા કે ના? હું એ જ તમને સમજાવું છું કે ખાવા પીવા તો, જો ખાવાનું કેવું છે ખબર છે? ખાવાનું એટલે મને ભાવતું, મને અનુકૂળ, મને શરીરને ગમતું ખાવા જેવી વસ્તુ એટલે તમારી લાઈફની સર્વ વસ્તુ થઈ ગઈ, સમજી લેજો। સર્વ વસ્તુ થઈ ગઈ। તમે આજે માત્ર એક સફેદ જ કપડામાં આખી જિંદગી કાઢવી હશે તો કાઢી શકશો કે નહીં? ઘણી બધી સ્ત્રીઓ, વિધવા સ્ત્રીઓએ આખી જિંદગી વિધવાતીને સફેદ વસ્ત્રમાં આખી જિંદગી કાઢી છે કે નથી કાઢી? વસ્ત્રનું બંધન ક્યારે તમને નડવાનું નથી। વસ્ત્ર તમે આખી જિંદગી સફેદમાં કાઢી શકશો। આખી જિંદગી તમે ચપ્પલ વગર બી રહી શકશો કે નહીં? આખી જિંદગી તમે ગાડી વગર બી રહી શકશો। ખાલી હું 40 જ્યાં બી, મારે કોઈ ઇલેક્ટ્રિક નથી, મારે કોઈ લિફ્ટ નથી વાપરવી, ચલો લિફ્ટ વગર બી તમે આખી જિંદગી રહી શકશો કે નહીં? પણ શું સ્વાદ વગર રહી શકશો? રહેવું જોઈએ જુદી વાત છે, એ આપણને બધાને ખબર છે, પણ રહી શકીએ એ સંભવ નથી, કારણ કે આપણે એ રીતની આપણને આદતો નથી પાડી। સમજાય છે આ વાત? આપણે આપણી એ રીતની આદતો જ નથી પાડી। આપણે હજી જે રોજ રસોડામાં જાય છે, જે પોતે રસોઈ કરે છે, એને તો આ આદત પડવાની બી નથી, કારણ કે એને ખબર જ છે કે મને કાલે કે પર મેં ઘરમાં 4 વ્યક્તિ છે, 4 વ્યક્તિની ભાવતી જ વસ્તુ બનવાની છે।
કોઈની ન ભાવતી હોય એવું બનવાની છે ખરી? બતાવો. તમારે આજે 2 જણા જ છો કે ઘરમાં 2 જ જણા છો અને જે રસોઈ બનાવવાના છો આ બેને જ ભાવતી ન હોય ને ત્રીજી જ વસ્તુ હોય એવી એવું બને છે ખરા? બતાવો. હા બસ બસ વાત જ આ છે, વાત જ આ છે. તમે એ બનાવી જ નથી શકવાના. તમારે જે 2 જણ 3 જણ છે એની ભાવતી રોજ આજે નહીં તો કાલે તમને ઓછી ભાવતી હશે તો પણ તમે એ જ બનાવશો, રાઈટ? હા, આ જ અઘરું છે બેન, આ જ વસ્તુ હાર્ડ છે. અને આ ત્યારે જ બને જ્યારે તમે કોઈના ત્યાં જમવા જાઓ. કોઈના ત્યાં જમવા જાઓ છો અને એને કયા વગર પહોંચી જાઓ છો, એને કહેતા બી નથી ને કયા વગર પહોંચી જાઓ અને એ વખતે એના ઘરે જે રસોઈ બની હોય એમાંથી જ તમે જમો અને તમે એ જ જમો કે જે એણે બનાવ્યું છે. આ જ અઘરું છે, સૌથી વધારે અઘરું આ છે. સમજાય છે? સાહેબ જેવા સાહેબોને પણ જ્યારે એક વખત એમ લાગે, તમને ખ્યાલ છે ઓલો મોદકની વાર્તા ખબર છે સાહેબની? એક બાળ સાધુ છે, બાળ સાધુ તો નથી પણ સાધુ જ છે, પણ એ શક્તિવાળા છે. એમને લબ્ધિ પ્રાપ્ત છે વેશ બદલવાની, એમને વેશ બદલવાની લબ્ધિ મળેલી છે. અને એક જગ્યાએ ગયા ને ત્યાં એમને ગોચરીમાં લાડુ હતા એટલે પેલા કેસરિયા 4 લાડુ તો લઈ લીધા, 4 વોરી લીધા. વોરી અને જરાક નાકા ઉપર ગયા, ગલીના નાકે ગયા અને નાકે જઈને વિચાર્યું કે અરે આ તો 4 લાડુ છે, 4 લાડુ આ એક લાડુ આ હાથમાં લેશે, એક આ લેશે, એક આ લેશે, એક આ લેશે, સુગંધ તો બહુ સરસ આવે છે, મને તો મળશે જ નહીં એટલે હું પાછો જઉં. એટલે એનામાં લબ્ધિ છે એટલે એણે વેશ બદલ્યો, બીજા સાધુનો વેશ લઈ લીધો અને એ ત્યાં પાછા પહોંચી ગયા. પાછા પહોંચી અને બીજા 4 લડ્ડુ વોર્યા, બીજા 4 લડ્ડુ વોરી અને પાછા ગયા. પાછા જરાક દૂર જઈને પાછો વેશ બદલે છે, પાછો વેશ બદલે છે અને પાછા ત્યાં આવે છે. હવે વેશ તો બદલે છે, ત્યાં આવે છે, થેલી એની એ છે, થેલી એની એ છે એટલે એક ડબ્બામાં 4 લડ્ડુ, બીજામાં 4 લડ્ડુ, ત્રીજામાં એ પાછા 4 લડ્ડુ લેવા આવ્યા. એ લેવા આવ્યા ત્યારે જે મોદકની સુગંધ છે ને એમાં એ ગૃહિણી સમજી ગઈ, શ્રાવિકા સમજી ગઈ કે અરે આમને આ તો થેલીમાંથી મારા જ મોદકની કેમ સુગંધ આવે છે. સમજી ગઈ કે નહીં? તમે સમજી જાઓ કે નહીં? સુગંધને તો તમે રોકી નહીં શકો. એટલે એ સાહેબના પાત્રામાં બીજા 4 લડ્ડુ ચૂપચાપ મૂકી દે છે પણ એને ખબર પડી ગઈ કે આમના બીજા થેલામાં મારા બીજા મોદક છે કારણ કે મોદકની સુગંધ આવે જ છે. સમજાય છે? એટલે એને જરૂર ખેંચીને ઊભી રહી ગઈ. સાહેબ વોરીને ગયા એટલે બારીમાંથી એ ઉપરથી જુએ છે, છત ઉપરથી જુએ છે. જરાક આગળ જઈને સાહેબ ગયા, એમણે પાછો વેશ પલટો કર્યો સિદ્ધિથી અને પાછા એ વોરવા આવ્યા. આ તરત પાછી નીચે ઉતરી ગઈ. નીચે ઉતરીને એમણે પાછા બીજા લડ્ડુ વોરાવી દીધા. એ સમજી ગયા, એ સમજી પણ ગયા. અને આ પણ જેટલી વાર સાધુને જેટલા ઘરમાં એમને ઉપાશ્રયમાં સાધુ હતા એ બધાને એ લડ્ડુ લઈને ગયા અને છેલ્લે લડ્ડુનો ડબ્બો એ ખાલી થઈ ગયો ત્યાં સુધી આવ્યા અને એટલે આચાર્ય ભગવંતે પૂછ્યું કે આજે આટલા બધા લડ્ડુ આ કેવી રીતે બન્યું? આચાર્ય ભગવાન તો પૂછે જ ને, તો કે આટલા બધા લડ્ડુ એક ઘરથી તમારાથી ના બોરાય, કે તમને ના ન પાડી? તો કે ના, મને ના ન પાડી અને હું લઈ આવ્યો, બધાને મળે એટલા માટે લઈ આવ્યો. હવે સમજાય છે અહીંયા તમને શું થયું? ઈચ્છા જ આવી ને, અપેક્ષા જ આવી કે નહીં? હજી બીજા બધા સાધુને તો ઈચ્છા થાય કે ન થાય, આ સાધુને જ એવી ઈચ્છા થઈ કે હું હજી લઉં, હું હજી લઉં, હું આના માટે લઉં, હું આના માટે લઉં, હું આના માટે લઉં, નહીં તો મને તો મળશે જ નહીં. સમજાય છે? એટલે આ જ વસ્તુ નથી જવાની, આ જ વસ્તુ નથી જવાની. અને આપણે એના ઉપર જ કાબુ કરવાનો છે, કાંક્ષા ઉપર. કરશું હવે? કરશું. બસ એ ઓછું કરશું એટલે આપણા 8 કર્મો, બાકીના 7 કર્મો શિથિલ થવા મળશે. આજનો બહુ સરસ પાઠ હતો, એટલો સરસ પાઠ હતો કે કર્મના ગાઢ બંધાયેલા કર્મ શિથિલ કઈ રીતે થાય છે. હા બોલો. હું એમ કહું છું કે આપણે કોઈના ઘરે જાઓ અને કોઈ વસ્તુ ના ખાતા હોય તો પછી કેવી રીતે ખાઈ લેવાની? ના ખાતા હોય એટલે તમારે નિયમ છે એટલે તમે શ્રાવિકા તરીકે તમે આલુ ને એ ન ખાઓ, એનો નિયમ છે. બાકી શાનો નિયમ છે? બાકી શું નહીં ખાવાનો નિયમ છે?
બીજી ઘણી વસ્તુઓ એવી હોય કે આપણે ખાતા જ ન હોય. કઈ એવી એવી તો એવો નિયમ જ શાનો હોય કે હું આ ન ખાઈ શકું? જે ખાઈ શકું એવી વસ્તુ ન ખાવાનો નિયમ કેમ લીધો છે? એ લેવાય નહીં એમ. ના, ન જ લેવાય ને. કેવી રીતે લેવાય? અચ્છા, ખાલી બટાકા કાંદા ને એવું. હા, તમે જે અનંતકાય છે ને બહુબીજ છે ને જે કંદમૂળ છે તમે એનો નિયમ લો. બીજી બધી વસ્તુનો નિયમ થોડી લેવાનો છે. બાધા તો ના જ પડી છે, કારણ બાધાનો અર્થ શું થયો? તમે તમારી જાતને બંધનમાં મૂકી દીધી છે. ઓકે. હા, હવે સમજજે ખાસ બીજી વાત સમજજે. તમે જે ચૂલાનો નિયમ લે છે ને એ પણ 2 કે 3 ચૂલાની છૂટ રાખે છે, ખબર છે? એક જ ચૂલાનો નિયમ નથી હોતો એને. હા કે ના? હા. હા, કેમ? કદાચ કઈ સંજોગો આવે ને સામે જવું પડે ને મારે ત્યાં જવું પડે કે મારે કોઈકના ઘરે જવું પડે ને મારે એના ચૂલાનું ખાવું પડે તો એને છૂટ રાખી છે. એને એવું નથી કીધું કે હું નહીં ખાવું, ઉપવાસ કરી લઈશ, મારે બાધા એટલે બાધા. બોલો, એવી છે છૂટ? એટલે જે વસ્તુ બની શકે એવી હોય એની તો બાધા લેવાય જ નહીં કોઈ દિવસ. તમે ખાલી લિમિટ રાખો, નિયમ રાખો, લિમિટ ચોક્કસ રાખો. પણ ચૂલાની છૂટ હોય, વસ્તુ ગણતરીની બાધા હોય, પછી તમે આની બાધા હોય, કોળિયાની બાધા હોય, એ તમે રાખી શકો છો. 32 કોળિયા કંઈ ઓછા નથી, આરામથી પેટ ભરાઈ જાય. બરાબર? 32 ને 28 રાખી શકો તમે. વસ્તુ તમે મારા ઘરે જમવા આવ્યા છો, તમારે 7 જ વસ્તુ ખાવાની બાધા છે, તો 7 વસ્તુ તમે ભાણામાં લો તો પેલી વ્યક્તિને એટલું કહી શકો કે ભાઈ મને 7 વસ્તુ ખાવાની છૂટ છે. હું 7 થી વધારે, પણ તમે 7 વસ્તુ તેના ઘરની ખાધી ને. કઈ વસ્તુ એ નહીં મને આની બાધા છે એવું નહીં ખાવું, મને આની બાધા છે ન ખાવું, એ ન ચાલે. પણ હું ખાલી તારા ઘરની બનાવેલી રસોઈમાંથી 10 વસ્તુ બનાવી તો હું 7 વસ્તુ લઈશ, ઇનફ છે. એ ખુશ થઈ જશે. તમે 7 વસ્તુ તો ખાઈ રહ્યા છો ને એની. હા કે ના? હા, ખાઈ રહ્યા છો. બરાબર? आओ. ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छा था आज, समझ में आ गया. अब ये प्रासु और ऐषणीय भोजन उसकी बात की है कि वो क्या क्या उपचय करता है, क्या क्या फायदा है उसका, उसी की बात चल रही है. हम उसी को ही पूरा करेंगे अभी कि प्राशुक और ऐषणीय भोजन करता हुआ निर्ग्रंथ आयुष्य कर्म को छोड़ के शेष 7 कर्म के बंध को वो शिथिल कर देता है. और जैसे 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 बंधन शिथिल होता जाएगा, कर्म खुलते जाएंगे, खरते जाएंगे और आप बहुत ही जल्दी कुछ ही भव के अंदर ये चतुर्गति रूप संसार से व्यतिक्रमण कर लोगे. क्लियर होगी बात आज? बहुत सारी चीज से आप बच सकते हो. त्रस्कायिक जीवों के प्रति आप बिल्कुल उसके जीव दया वाले हो जाओगे. एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय सभी जीवों के प्रति भी जीव दया हो जाएगी. पृथ्वी, अब, तेऊ, वायु, वनस्पति के प्रति भी आपकी जीव दया हो जाएगी अगर आप ये प्राशुक और ऐषणीय भोजन करोगे तो. बराबर? आपके कर्म ही घटते जाएंगे तो अल्प प्रदेश होता जाएगा ना आत्मा का. कर्म के घटने पे होगा कि नहीं? होगा. ठीक है, चलो. अब है लास्ट, इसका जो टॉपिक है वो शाश्वत और अशाश्वत पद. ये जो नवा उद्देश्यक है उसका वो लास्ट टॉपिक है, शाश्वत अशाश्वत पद. तो क्या अस्थिर द्रव्य परिवर्तित होता है? भगवान को ये सवाल हो रहा है. अस्थिर द्रव्य क्या परिवर्तित होता है? स्थिर द्रव्य परिवर्तित नहीं होता है क्या? स्थिर तो होगा ही नहीं ना, ऐसा क्वेश्चन है. क्या नहीं होता है क्या अस्थिर द्रव्य भी भग्न होता है? क्या स्थिर द्रव्य भग्न नहीं होता? क्या बालक शाश्वत है? क्या बालकत्व अशाश्वत है? क्या पंडित शाश्वत है? क्या पंडित अशाश्वत है? इतने सारे सवाल कर दिया.
भगवान जवाब दे रहे हैं कि हाँ गौतम, अस्थिर द्रव्य परिवर्तित होता है, स्थिर द्रव्य परिवर्तित नहीं होता। देखो ध्यान से सुनो, जो अस्थिर होगा वही परिवर्तित होगा, जो स्थिर है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। अस्थिर द्रव्य कौन है? अस्थिर द्रव्य कौन है? बोलो। अस्थिर द्रव्य अस्थिर है, जे धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, पूतगलास्तिका है, काल, ये सब अस्थिर है, बराबर? ये सारे स्थिर है, बराबर? स्थिर है ना? हाँ, ये स्थिर है। वर्तमान समय तो स्थिर ही है, भूतकाल चला गया, भविष्य आने वाला है, पर वर्तमान तो काल स्थिर है कि नहीं? एक समय तो हमेशा एक समय रहेगा कि नहीं? वर्तमान में रहेगा। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि जो भी ये षड द्रव्य है संसार के, वो सारे स्थिर है, वो हमेशा स्थिर रहेंगे, उसका कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होगा मतलब ऐसा नहीं होगा धर्मास्तिका अधर्मास्तिका हुआ, होगा क्या बताओ? नहीं। अधर्मास्तिका है कल धर्मास्तिका हो गया, आकाशास्तिका है अवकाशांतर में परिवर्तित हो गया, हुआ ऐसा कभी? नहीं। भूतकाल वर्तमान काल हो गया, ऐसा होगा? नहीं। भविष्य काल वर्तमान हो, वर्तमान भविष्य हो, ऐसा होगा? बताओ। नहीं। नहीं। ये जैसे हाँ, जो जहाँ वहाँ ही रहेंगे। ऐसे ही इसे स्थिर द्रव्य परिवर्तित नहीं होता, अस्थिर द्रव्य परिवर्तित होता है। जो अस्थिर है, अस्थिर क्या है? पूतगलास्तिका है, अस्थिर है ना? हाँ। पूतगलास्तिका स्थिर है, इसीलिए शरीर कभी भी स्थिर रहता है? नहीं। बच्चे का जन्म हुआ वो हमेशा बच्चा ही रहेगा, मरेगा तब तक? नहीं। नहीं, शरीर बढ़ेगा, मूर्त द्रव्य है ये, बढ़ेगा, मरेगा, जिएगा, फिर से नया जन्म लेगा, वृद्ध होगा, होगा कि नहीं? हाँ। वो परिवर्तित होता है, इसीलिए अस्थिर द्रव्य परिवर्तित होता है, और जबकि स्थिर द्रव्य परिवर्तित नहीं होता। बराबर? आओ, अस्थिर द्रव्य क्या भग्न होता है? दूसरा क्वेश्चन, अस्थिर द्रव्य भग्न होता है? हाँ, अस्थिर तो भग्न होगा ही ना। हाँ। जो स्थिर नहीं रहने वाला है वो टूट गया, इसलिए अस्थिर हो गया। आज मेरे दांत हैं तो स्थिर है, वो कल टूट सकते हैं कि नहीं? टूट सकते हैं। टूट सकते हैं, तो अस्थिर अपने आप भग्न होगा, बराबर? और स्थिर द्रव्य कभी भग्न नहीं होता। आकाश स्थिर द्रव्य है, बोलो कभी टूटेगा आकाश? नहीं। कभी आकाश टूट के गिरा, ऐसा हुआ? नहीं। नहीं, क्योंकि वो स्थिर द्रव्य है ना। धर्मास्तिका अधर्मास्तिका है, सब स्थिर। तो स्थिर द्रव्य का भग्न नहीं होता है, लेकिन अस्थिर जरूर भग्न होता है। उसके बाद बालक शाश्वत है, बालक शाश्वत है, बालकत्व अशाश्वत। बालक जरूर शाश्वत है, हर एक जीव एक बार तो बालक होगा ही होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी मनुष्य कभी बालक हुआ ही नहीं, कह सकते हो? नहीं। बालक एक पद है, पद शाश्वत है। ऐसे ही वृद्धत्व एक पद है, वो शाश्वत है ना? हाँ। हाँ, हर एक जीव जन्म लेगा, वो बालक बनेगा ही बनेगा, पर बालकत्व क्या टिकेगा हमेशा के लिए? नहीं। तो बालक शाश्वत है, बचपन शाश्वत नहीं है। बहुत क्लियर कह दिया, बालक शाश्वत है, बचपन शाश्वत नहीं है। युवानी शाश्वत है, यौवन शाश्वत नहीं है। देखो बहुत फर्क है दोनों में, है कि नहीं? हाँ। हाँ, वृद्ध शाश्वत है, अवस्था शाश्वत है, वृद्धत्व शाश्वत नहीं। वृद्धत्व हमेशा के लिए नहीं टिकेगा, बराबर? ऐसे ही पंडित शाश्वत है, बहुत बहुत बुद्धि है, बहुत ही ज्ञानी है, वो शाश्वत है। क्या पंडितत्व शाश्वत है? नहीं। आज अगर पंडितत्व है, कल को पंडितत्व निकल गया, मिथ्यात्व आ गया, तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? हाँ। इसीलिए आज सम्यकत्व है, कल वापस निकल के मिथ्यात्व आ सकता है कि नहीं?
आ सकता है, लेकिन पंडित शाश्वत है ना, व्यक्ति तो शाश्वत है ना, ज्ञान शाश्वत है कि नहीं? पंडित का अर्थ है ज्ञान, वो एक पद है, ज्ञानी का पद है कि नहीं पंडित? पंडित इंडिविजुअल मत देखना, व्यक्तिगत नहीं देखना है। पंडित क्या है भाई? ये बहन पंडित है, ये भाई पंडित है, तो उसको एक पद दिया ना आपने। वो बहन शाश्वत नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान तो शाश्वत है ना, पद तो शाश्वत है ना। हाँ, तो पंडित पद शाश्वत है, लेकिन पद से मिलता हुआ जो आपका स्वरूप है, जो आपका जैसे हम बोलेंगे ना लाभ है, पुण्य है या पाप है, जो भी है, कर्म है, कर्म का जो फल आप ले रहे हो वो अशाश्वत है। बालक शाश्वत है, बालक का फल है बालकत्व, वो है अशाश्वत। समझ में आ गया? तो क्या शाश्वत क्या अशाश्वत है वो भी आज क्लियर हो गया ना? हाँ, बोलो, समझ में आ गया ना? आगे लूँ? हाँ, लेती हूँ। अभी तो टाइम है, अभी तो 5:10 ही हुआ है, 10 मिनट और ले लेते, बराबर? हाँ, तो 10वां उद्देश्य है अन्य युधिक। हे भंते, अन्य युधिक ऐसा व्याख्यान, भाषण, प्रज्ञापन और प्ररूपण करते हैं जैसे कि चलमान अचलित, उदीर्यमान अनुदीर्य, वेद्यमान अवेदित, प्रहीणमान अप्रहीण, छिद्यमान अछिन्न, फिर भिद्यमान अभिन्न, दयमान अदग्ध, प्रियमान म्रियमान अमृत, निर्जीर्यमान अनिर्जीर्ण। मतलब ये दोनों ऑपोजिट है, समझ में आ रहा है? ये सारी ऑपोजिट है। चलमान मतलब चल रहा है, अचलित यानी कि स्थिर, तो चल चर स्थिर, उदीर्णा अनुदीर्त मतलब सत्ता। समझ में आ रहा है ऑपोजिट? हाँ, तो दो परमाणु पुद्गल की क्या एक संहति होती है? दो परमाणु पुद्गल क्या एक संहति मतलब वो इकट्ठे होते हैं? दो परमाणु पुद्गलों की एक संहति कभी नहीं होती है। देखो, ये परमात्मा ने ये बात बताई है कि दो परमाणु पुद्गल, एक ही चीज के दो परमाणु हो या अलग अलग के दो परमाणु, दो परमाणु पुद्गल कभी भी इकट्ठे नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? भगवान ने जवाब दिया, संहति मतलब जुड़ गए, दो परमाणु ऐसे जुड़ गए ना। क्यों नहीं जुड़ते हैं? दो परमाणु पुद्गल की एक संहति किस कारण से नहीं होती है? क्योंकि परमाणु पुद्गल निर्जीव है। समझ में आ गया? आगे जो किया वही फिर से याद करो। वो क्या है? निर्जीव है, सजीव नहीं है, जीव नहीं, अजीव है। बराबर? परमाणु पुद्गल तो अजीव है ना? अजीव है, पुद्गलास्तिका अजीव है। तो दो परमाणु पुद्गल इसीलिए नहीं जुड़ते क्योंकि उसमें स्नेह काय नहीं होता। स्नेह यानी कि जोड़ना, લાગણી નથી। છે બે પરમાણુમાં લાગણી છે એટલે જોડાયા કે મેં એમાં લાગણી નાખી એટલે જોડાયા? લાગણી નાખો એટલે જોડાય, રાइट? तो मेरे ये दो जो परमाणु है, शरीर के सारे परमाणु अलग कर दो, वो जुड़े कैसे? अंदर खून आया, समझ में आ रहा है? चर्बी आई तब वो जुड़े ना। तो स्नेह काय से जुड़े? किससे जुड़े? वो स्नेह काय से जुड़े। दो परमाणु पुद्गल में स्नेह काय नहीं होता है, इसीलिए दो परमाणु पुद्गल की एक संहति नहीं होती। समझ में आ गया? अब वापस पूछ रहे हैं कि तीन परमाणु पुद्गलों की एक संहति होती है, दो की नहीं होती लेकिन तीन की होती है। किस कारण से? तीन परमाणु पुद्गलों में स्नेह काय होता है, इसीलिए तीन परमाणु पुद्गल की एक संहति फिर भी नहीं होती। समझ में आ गए? एक नहीं हो सकते, तीन का एक नहीं होगा। तीन को आप तोड़ो तो एक एक और एक दो अलग होंगे, बराबर? तीन में से आप एक निकालो तो एक एक रहेगा, एक दो रहेंगे, बराबर? तो उनकी भी एक संहति नहीं कही जाएगी। तीन को आपने जोड़ दिया तो क्या एक संहति हो गई? तीन को आपने किसी से जोड़ा, मान लो कि आपने
फेविकॉल से जोड़ा या स्नेह से जोड़ा या किसी भी गम से जोड़ा, किसी से जोड़ा, अब आप उसको खोलो तो दो में से एक एक को अलग करोगे तो दो जुड़ा हुआ रहेगा और एक अलग होगा ना। हाँ तो तीनों की इसीलिए हाँ हाँ नहीं, जोड़ने के बाद भी यहाँ ये है कि दो जब जुड़ते हैं ना, दो परमाणु पुद्गलों की एक संहति नहीं होती, लेकिन तीन परमाणु पुद्गलों की एक संहति होती है। देखो बात ये है, समझिए, दो की एक संहति नहीं मानी जाएगी लेकिन तीन की एक मानी जाएगी। जब तीन जुड़ते हैं, हाँ બધા નિર્જીવ જ છે જોડીએ તો એક બી જોડી શકાય ને બી ये वो चाहे सब निर्जीव है कोई बात नहीं, लेकिन तीन जुड़ सकते हैं, दो की एक संहति नहीं गिनी जाती। तीन की एक संहति गिनी जाती है। समझ में आ रहा है? સમજ પડે છે પણ પ્રેક્ટિકલ નથી। देखिए एक बात है, પ્રેક્ટિકલ એટલા માટે નહીં, જો સાંભળો, હવે સમજો, શાંતિથી સમજો। જુઓ, તમે બે પરમાણુને જોડ્યા, ધ્યાનથી સાંભળો, હવે બંનેને છૂટા પડો તો બંને સ્વતંત્ર, પણ તમે ત્રણને જોડ્યા અને એમાંથી એક છૂટો પાડો તો એક જ સ્વતંત્ર, પેલો તો ભેગો છે કે નહીં? हाँ વાત સમજાય છે? हाँ તો ત્રણેયને બી છૂટા પાડીશું। ના, તમે ત્રણેયને નથી પાડી રહ્યા, પણ તમે એમાંથી એક જ પાડી રહ્યા છો। હા તો બરાબર। હા, તમે એક જ્યારે છૂટો પાડો છો ત્યારે બે તો જોડાયેલા રહ્યા કે નહીં? પણ જ્યારે તમે બેને જ જોડો છો, જો જ્યારે બે છૂટા જ છે, બંને અલગ અલગ છે, તો પણ એ લોકોનું સંહનન નથી। હવે તમે બે ભેગા કર્યા એમાંથી એકને છૂટો પાડો તો પાછા બે એકલા થઈ ગયા, એટલે સંહનન નહીં ગણાય। હવે તમે ત્રણને ભેગા કર્યા, ત્રણમાંથી એક છૂટો પાડ્યો તો બેનું તો સંહનન જોડાણ થયું કે નહીં? એટલે ત્રણ ભેગા થાય તો એમાં સંહનન કહેવાય। સમજાયું? हाँ હવે ગમે એટલા કરી શકીએ ને। હા, હવે જેટલા પાંચ થયા તો પણ સંહનન તો થઈ જ ગઈ, થઈ ને? હા તમે જ્યારે પાંચ કરો છો તો પણ એમાંથી એક છૂટો, જ્યારે છૂટો પાડો ત્યારે એક એક જ છૂટા પડવાના ને, જ્યારે પણ પાડો ત્યારે એક એક જ છૂટા પાડી શકો, એનાથી વધારે પડવાના બી નથી, રાઈટ? તો પાંચની સંહતિ કહેવાય, ચારની સંહતિ કહેવાય, માત્ર એકની અને બેની ના કહેવાય। જો આખી વાત ક્લિયર થઈ ગઈ હોય તો ક્લિયર થયું? आओ, तीन परमाणु पुद्गल में स्नेह काय होता है, इसीलिए तीन परमाणु पुद्गलों की एक संहति नहीं होती, उनकी एक संहति नहीं कही जाएगी, क्योंकि उनमें स्नेह काय होता है। वो टूटने पे दो या तीन भाग में विभक्त होंगे, या तो दो में होंगे या तीन में होंगे, अगर आप उसको तोड़ोगे तो जब दो में होगा तो दो में होगा, दो भाग में उसने आपने उसको विभक्त किया और 1.5 परमाणु पुद्गल होता है। दो में से एक को तोड़ोगे, आधा तोड़ोगे तो आधा निकल गया तो भी 1.5 हुआ, दूसरी और भी 1.5 हो गए, अगर उसके दो भाग किए तो तीन परमाणु पुद्गल है। देखिए ध्यान से सुनिए, आप उसके 3 भाग करोगे तो तीनों अलग होंगे, लेकिन अगर उसके 2 ही भाग करोगे तो एक में 1.5 दूसरे में 1.5 रहेंगे। हाँ, एक में 1.5, एक में 1.5, एक में दूसरा 1.5, अगर आपने 2 भाग में विभक्त किया तो अपने आप संहति हो गई कि नहीं? हो गई ना? हाँ, समझ में आया? तीन भाग में विभक्त अगर करोगे, 3 अलग अलग, तो वापस 3 परमाणु पुद्गल अलग हो जाएंगे। तो चार परमाणु में भी वही होगा, 4 होगा तो भी 4 को इकट्ठा करोगे, उसके 2 भाग करोगे तो दो तरफ जाएंगे, तो संहति तो हो गई ना? संहति तो हो गई। वापस 5 करोगे तो गड़बड़, 2.5 होंगे 2 तरफ।
5 हुए तो वापस गड़बड़, 2.5 हो गए। बराबर। आधा करोगे तो बराबर, 5 का आधा करो तो 2.5 हो गए। इसीलिए यहाँ ऐसा परमात्मा ने ये कहा है कि 5 परमाणु पुद्गलों में एक संहति होती है, वे एक रूप में संहत होकर दुख रूप में परिणत होते हैं। क्योंकि 5 इकट्ठे हो गए ना तो 5 में से एक जरूर आधा कटेगा। समझ में आ रहा है? आधा करोगे तो हाँ, एक जरूर आधा कटेगा, एक कभी भी एक नहीं रह पाएगा। 3 में भी आप 3 अलग करोगे तो आप तीनों स्वतंत्र है, लेकिन तीनों के 1.5 आधा आधा कर लिया तो एक तो आधा कटा कि नहीं? हाँ, हाँ, तो ये दुख रूप में परिणत हुए। हाँ, हाँ, हाँ। तो एक परमाणु के टुकड़े हुए ना, इस प्रकार से आधा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगर इस तरीके से देखने जाओ तो एक परमाणु का आधा परमाणु हिस्सा हुआ। तो ये दुख भी कैसा है? शाश्वत है, सदा संगठित रूप में उपचित और अपचित होता रहता है, पर ये दुख भी शाश्वत है, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। समझ में आ गया? आ गया? हाँ, बोलो। हाँ, हाँ, समझ में આવી ગયું કાશ્મીર? आओ। अब बोलने की बात की है। भाषा परमाणु, भाषा के पुद्गल परमाणु। बोलने से पहले भाषा भाषा होती है, बोलते समय भाषा अभाषा होती है, और बोलने का समय व्यतिक्रांत हो जाने पर बोली गई भाषा भाषा है। देखिए फिर से मैं बोल रही हूँ, सुनिए। बोलने से पहले जो भाषा भाषा है वो बोलते समय वो अभाषा हो जाएगी, बराबर? क्योंकि अब मैंने बोल दिया और बोलने के समय निकल गया, मैंने बोल भी दिया, टाइम निकल गया, तो अब वो बोली गई भाषा वापस भाषा हो गई कि मैंने ये बोला था? नहीं। हाँ, क्या वो जो बोल रहा है उसके भाषा है, क्या जो नहीं बोला है उसके भाषा है? ध्यान से सुनिए, जो बोल रहा है उसी की भाषा है। समझ में आ रहा है? जो नहीं बोल रहा है उसकी भाषा है, जो बोल रहा है उसकी भाषा है, जो नहीं बोल रहा है उसकी भाषा है ना, क्योंकि उसके दिमाग में भाषा है। समझ में आ रहा है? जो बोल चुका है उसकी भी भाषा है, पर जो बोल रहा है उसकी भाषा है नहीं। जो बोल रहा है उसकी भाषा है, ये भाषा उसकी है क्या? जो बोल रहा है वो नहीं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, इसको समझिएगा। मेरे पास 100 रुपया था, मैंने खर्चा कर लिया, तो मैंने 100 रुपये का खर्च किया। वो 100 रुपया किसका था? मैंने उसका दान दे दिया। तो जो 100 रुपया मैंने दान दिया वो मेरा था? नहीं। अभी मेरा तो हो गया ना कि मैंने दान कर दिया, मेरे नाम चढ़ गया कि नहीं? हाँ। वो 100 रुपया मैं कल दान करूंगी तो वो भी मेरा ही है ना? हाँ। बात समझ में आ रही है? पर मैं अभी उसको दान दे रही हूँ तो क्या वो मेरा है? नहीं। मैं दे रही हूँ, हाँ। मैं दे रही हूँ, मेरे हाथ से जा रहा है तो वो मेरा नहीं है। समझ में आई बात? देखिए बहुत ध्यान से फिर से सुनिए। मैं अभी ये भगवती सूत्र का पाठ बोल रही हूँ, तो वो मेरी भाषा खत्म हो गई। मैंने बोल दिया, अभी मेरे पास भाषा बची नहीं। मैं कल ये बोलूँ कि मैं भगवती का पाठ बोलने वाली हूँ, तो भविष्य में मैं बोलूँगी तो अभी वो मेरे नाम से लगा रहेगा। हाँ। और कल मैंने बोला कि मैंने वो कल बता दिया, तो वो भी मैंने बताया, वो मेरे नाम से लग गया। हाँ। पर अभी वर्तमान में मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुंह से तो शब्द बाहर निकल रहे, मेरे पास अभी है क्या? बताओ। नहीं। बात समझ में आई? हाँ। आई? हाँ। सबको आ गई? मैं कल बोलूंगी ना तो भी मेरे पास मेरे नाम से जमा रहेगा, बराबर? मैंने कल बोल दिया ना, वो भी मेरे नाम से जमा रहेगा। मगर अभी मैं बोल रही हूँ तो क्या वो मेरे पास है? नहीं। अभी मैं दे रही हूँ वो मेरे पास नहीं है।
समझ में आ रहा है? हाँ इसीलिए बोलने से पहले भाषा भाषा होती है, बोलते समय वो अभाषा होती है, लेकिन बोलने के बाद समय व्यतिक्रांत हो जाने पर भी वो भाषा होती है। क्लियर हुआ? हाँ जैसे कि मैं कल भाषण करूंगी तो भाषण हुआ, मैंने कल भाषण कर दिया तो वो भी भाषण हुआ। हाँ मैं अभी भाषण कर रही हूँ, मतलब शब्द तो बाहर निकल रहा है, तो मेरे पास कुछ है क्या, बताओ? नहीं नहीं। तो वर्तमान में जीव जो जी रहा है उसमें उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया? हाँ हाँ, उसने जो पहले सत्ता में लिया वो उसका था, वो सत्ता में आया, भोग लिया, नया कर्म बंद कर दिया, वो उसका है। लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है वो कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। कितना अच्छे से समझा है, आप सोचो। अब इसी चीज को क्रिया करने से पहले क्रिया में लो, क्रियमाण में लो। क्रिया करने से पहले क्रिया दुख कर होती है। समझ में आया? करने से पहले वो दुख कर होती है। श्रेणिक राजा नरक में नहीं गए तो उससे पहले दुख, उनको दुख हुआ कि नहीं? मैं नरक में जाऊंगा, मुझे कितनी पीड़ा होगी। क्लियर हो रहा है? हाँ हाँ, वो दुख कर होती है। जब श्रेणिक राजा वहां से बाहर आएंगे तब बोलेंगे कि अरे ये जीव नरक गति भोग के अभी तीर्थंकर परमात्मा होंगे ना, अभी भी पता है कि वो नरक में गए। बाद में बाहर आएंगे तो अरे ये नरक से जीव आया, ये तीर्थंकर, ये पद्मनाभ भगवान बने पर वो उनका जीव नरक से आया है। बोलो, तब भी लगेगा कि नहीं विशेषण? लगेगा। अभी किसी को भी नरक में किसी को मालूम है कि ये श्रेणिक का जीव है? नहीं। देखो मजा की बात ये है, देखो अभी श्रेणिक राजा वर्तमान में है, कौन जानता है नरक के जीवों में से कि ये नरक के जीव है, इसको हमको नहीं मारना चाहिए, कोई नहीं। उसको हमको वंदन करना चाहिए? बोलो। नहीं, कोई नहीं है, ये कोई नहीं करेगा। समझ में आ गया? हाँ हाँ। तो क्रिया करने से पहले क्रिया दुक्कर होती है, क्रियमाण क्रिया दुक्कर नहीं होती। आप जो कर रहे हो वो दुक्कर नहीं होती है। क्रिया का समय व्यतिक्रांत निकल गया तो की हुई क्रिया भी दुक्कर हो जाती। अब इसी चीज को, हाँ बोलो। બીજા જીવોને દર્શન મારે ના હોય ત્યાં ના હોય, સમ્યક દર્શની હોય, પણ એ પણ બધાને એને તો ખબર જ હોય કે શ્રેણીકને તો દુઃખ ભોગવવાના જ છે, તો જ છૂટવાનો છે। સમજાય છે? એને તો ખબર જ છે કે આને દુઃખ ભોગ્યા વગર એનો છુટકારો જ નથી। સમ્યક દર્શની તો કશું બોલશે, ઉપરથી અનુકૂળતા કરી આપશે કે નહીં? અરે તમે વિચાર તો કરો કે ધર્મેન્દ્ર ને પદ્માવતીએ શું કર્યું? અનુકૂળતા કરી આપી ભગવાનને। અનુકૂળતા કરી કે આપી કે નહીં? હવે તમે તમારે શાંતિથી સહન કરો, અમે તમને પાણીમાંથી બહાર કાઢી લીધા। સમજાયું? हाँ જ્યારે વિચાર કરો ત્યારે ખબર પડે। ભગવાનને અનુકૂળતા કરી આપી એ લોકોએ કે હવે તમે શાંતિથી ભોગવો, હવે તમારો નાક અને મોઢું પાણી, નાસિકા, તમે પાણીમાંથી બહાર નીકળી ગયા છો। કરી આપી કે નહીં? हाँ તો અનુકૂળતા કરી આપી। ઇન્દ્ર રાજા સંગમદેવની વાત, સંગમદેવની હાજરીમાં ભગવાનના વખાણ કર્યા, એ શું કર્યું? ભગવાનને અનુકૂળતા કરી કે નહીં કરી? करी। શું કર્યું? અનુકૂળતા જ કરી ને, કે જા ભાઈ તારો વારો હોય તો તું પતાઈને આવી જા। આ તો બહુ આના જેવા તો કોઈ છે નહીં સહનશીલ। એમને બોલે ઇન્દ્ર? ना વિચાર તો કરો, બધા દેવોને ખબર છે કે તીર્થંકર છે, નથી ખબર? खबर। વખાણ કરવાની શું જરૂર હતી? પેલાને સુતેલાને જગાડ્યો ને કે ભાઈ જા તારો વારો છે, તું પહોંચી જા। હા, અનુકૂળતા કરે છે એ લોકો। તો આપણને કોઈ નડે છે એ શું કરે છે? અનુકૂળતા કે પ્રતિકૂળતા? प्रतिकूल। કેમ પ્રતિકૂળતા? અનુકૂળતા બોલો। હવે શું બોલશો? प्रतिकूलता। હવે શું બોલશો? अनुकूलता। હા, જે આપણને નડે છે આપણને અનુકૂળતા કરી આપે છે।
એટલું યાદ રાખજો કે ક્રિયમાણ કર્મમાં ક્યારેય પણ ચાલુ કર્મ ક્યારેય પણ દુષ્કર નથી હોતા. તમે દુઃખી થઈ રહ્યા છો કોઈ કર્મથી, એ દુષ્કર નથી હોતા. ખાસ ભગવાનના શબ્દો છે. હવે આ યાદ રહેશે. હા રોગની પીડા ભોગવી રહ્યા છો એ દુઃખકર નથી હોતા. તમારા કર્મ ખપી રહ્યા છે, પૂરા થઈ રહ્યા છે, એટલે દુઃખકર નથી. આ પૂરા થઈ ગયા પછી તો તમારો આત્મા સાવ સરસ મજાનો થઈને બહાર નીકળશે. બોલો, કર્મ રહિત થઈને નીકળશે જો શાંતિથી કર્યા તો. ભગવાન આ જ કહી રહ્યા છે કે ચાલુ વર્તમાન સમયની કોઈ પણ ક્રિયા દુઃખકર નથી. આજે બહુ મોટી વાત મળી છે. મળી છે કે નહીં? હા વર્તમાનમાં કોઈ લાત મારીને જાય છે તો પણ દુઃખકર નથી. વર્તમાન આખા 9 મહિના શાંતિથી સાંભળો. હવે આખા 9 મહિના બાળક પેટમાં કેવી લાતો મારે માને? બોલો બરાબર. બોલો. હવે ચાલો, જન્મ થાય જ્યારે એનો ત્યારે દુઃખકર છે? ના દુઃખકર લાગે છે? ના તો પછી જ્યારે એ દુઃખકર નથી તો બીજી બી પીડા આવે. પ્રસૂતિની પીડા, પેટમાં લાત તમને દુઃખકર નથી લાગતી, પ્રસૂતિની પીડા દુઃખકર નથી લાગતી, તો બીજા બી કર્મ શાના દુઃખકર લાગે છે? લાગવા જોઈએ? ના ના લાગતું. જરાય ના લાગવા જોઈએ. કોઈ બોલી જાય એ ના લાગવું જોઈએ, કોઈ લડી જાય એ ના લાગવું જોઈએ. હવે લાગવું જોઈએ? ના ફરીથી આ સેન્ટેન્સ યાદ રાખજો. क्रियमाण कर्म दुखकर नहीं होते, क्रिया करने से पहले क्रिया दुखकर होती है. समझ में आया? હા हाँ, क्रिया करने से पहले क्रिया दुखकर होती है. क्रिया का समय निकल जाने पे की हुई क्रिया दुखकर होती है. क्रिया करने से पहले दुखकर है क्योंकि सत्ता में उसका उदय हुआ है और वो सामने आया है. पर वर्तमान जब आप उसको भोगने के लिए लग जाते हो तब आप शांति रख लो तो बिल्कुल दुखकर नहीं है. आपको शांति रखनी है और आपको शांति से उसको ख़त्म करना है. बस आप ऐसा समझ लेना. अगर आप शांति नहीं रखोगे ना, अगर मिथ्यात्वी, अगर 7वीं नारकी में बैठा हुआ जीव मिथ्यात्वी होगा ना, वो शांति नहीं भी रखेगा ना तो भी क्रिया कर का समय उतना ही रहेगा. 33 सागरोपम. बोलो, घटेगा नहीं. अगर वो शांति रखेगा ना चुपचाप, पहली नारकी वाला वो तो शांति रख ही नहीं सकता, वो तो शांति रख ही नहीं सकता. पहली नारकी में जीव शांति रखेगा ना तो भी उतना ही समय, नहीं शांति रखेगा ना तो भी उतना ही समय. पर शांति रखने से फायदा क्या हुआ? कर्म टल गया ना, हाँ खत्म हो गया ना. हाँ वो शांति रखने से फायदा. अगर शांति नहीं रखता तो क्या कर्म पूरा नहीं होता क्या? होता, नया नया भी बनता. हाँ, नया भी बनता, नया भी बन सकता था. अगर शांति नहीं रखते तो नया ही बनता था. मतलब पहले किया हुआ सत्ता में पड़ा है वो अशुभ है, बाद में आएगा वो भी सत्ता में पड़ा है. दोनों सत्ता में है ना. हाँ भूतकाल में भी वो कर्म सत्ता में पड़ा है, भविष्य में भी वो सत्ता में पड़ा है. तो वो कहाँ से सुख है, कहाँ से सुख देने वाला है बताओ? चलो, नहीं. भूतकाल, हाँ भूतकाल बन जाए वो कर्म भी सत्ता में, भविष्य में उदय में हो वो भी सत्ता में. तो सत्ता में तो कर्म पड़ा है, वो उसकी तो उपाधि है भाई. सत्ता में पड़ा इसलिए तो छुटका नहीं हो रहा है. तो सत्ता में पड़ा हुआ कोई भी कर्म सुखदायी है? नहीं. भूतकाल का है वो भी दुखदायी, भविष्य का है वो भी दुखदायी, क्योंकि वो सत्ता में पड़ा है. उदीर्णा में सामने वर्तमान में चल रहा है, उससे वो कभी भी दुखदायी नहीं है. क्लियर? क्लियर. हाँ, वो कभी भी दुखदायी नहीं. बहुत अच्छी बात है. ठीक है. क्रियमाण क्रिया दुखदायी नहीं होती. आज का ये एपिसोड ही इसके ऊपर. ठीक है. क्रिया करने से पहले दुखदायी है, पर क्रिया जब कर रहे हो तो दुखदायी नहीं है. क्रिया का समय निकल गया, मैंने ये गलत कर लिया, बाद में दुखदायी हो जाए. आपने किसी को 1000 रुपया डोनेशन गलती से दे दिया तो अरे मैंने मेरे 1000 रुपये निकल गए. बाद में कितना दुखी होते कि नहीं? गलती से दे दिया है तो वो देने के वक्त समझ आता है कि आप दुखदायी काम कर रहे हो? बताओ. नहीं. तब समझ में नहीं आता है कि मैंने 1000 दे दिया. मतलब क्रिया जब कर रहे हो तब दुखदायी नहीं है. बराबर.
बराबर बाद में पता चल गया ये 1000 गलत लोग को दे दिया तो कितना दुख हो जाएगा, सोचो। हाँ, ठीक है। तो ये खास ध्यान रखना है, जो क्रिया करने से पहले दुखदाई है वो क्रिया करते वक्त दुखदाई नहीं है, और क्रिया का समय व्यक्तिकांत हो जाने पे वो क्रिया दुखकर होती है। अब ये नया प्रश्न, क्या वह करने से दुखकर होती है और ना करने से दुखकर होती है? तो भगवान उसका जवाब दे रहे हैं, ना करने से वो दुखकर होती है। अगर आप नहीं करोगे तो दुख कर होती है, और करने से वो दुखकर नहीं होती। मतलब अगर आपने वो क्रिया नहीं की तो वो जरूर दुखदाई। आपने समय पे वो सत्ता में पड़े हुए कर्म की उदीर्णा नहीं की तो दुखदाई हो गई। हाँ हाँ, तो आपने उसको नहीं किया तो दुखदाई हो गई ना। मगर आपने उसको शांति से खत्म कर लिया तो मुझे, अब इसको अलग तरीके से सोचो, मुझे किसी को 1 लाख रुपया देना है, अगर मैं जब तक नहीं दूंगी वो दुखदाई है कि नहीं? हाँ जब तक नहीं दूंगी, बोलो, ब्याज चढ़ता जाएगा ना, हाँ सामने वाला मांगता ही रहेगा ना, हाँ और मेरे को देना है वो देना भी बाकी रहेगा, तो अपने आप दुखदाई। वो मैंने नहीं दिया तो मैं अपने आप दुखदाई हूँ। हाँ हाँ, और अगर मैंने दे दिया तो उससे ज्यादा सुख होगा किसी को? नहीं। तो क्रियमाण कर्म हमेशा सुखदायी होती है। बराबर बराबर, क्लियर डियर क्लियर। अभी उसमें एक लास्ट लाइन में बोल रही हूँ, सुनिए ध्यान से। ना करने से वो दुखकर होती है, क्योंकि आपने नहीं किया तो वो कर्म खत्म नहीं होगा, इसीलिए वो सत्ता में पड़ा रहेगा, इसलिए वो दुखकर। करने से वो दुखकर नहीं होती। दुख कृत्य नहीं है, दुख स्पर्शित नहीं है, दुख अक्रियमाण कृत्य है। प्राण भूत जीव और सत्व बिना किए भी वेदना का अनुभव करते हैं। वो सत्व बिना किए भी वेदना का अनुभव करते हैं। देखिए, प्राण है, भूत है, जीव है, वो तीनों की बात, और सत्व, चारों की बात की है, वो कुछ भी बिना किए भी वेदना का अनुभव कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? आप कुछ नहीं करके भी वेदना का अनुभव कर लोगे। एक बात ध्यान से सुनिएगा इसको, आप आज शांति से बैठे हो, बिल्कुल कुछ काम नहीं किया तो भी कंटाला आता है कि नहीं आता है? आता है। वेदना होती है कि नहीं होती है? आज मैंने कुछ भी नहीं किया, होती है। आज आप कोई काम नहीं करोगे तो भी वेदना होगी। और आपने बहुत सारा काम किया लेकिन कोई भलीवारी नहीं निकला, उसमें कोई रिजल्ट ही नहीं आया, तो भी वेदना होगी। हाँ होगी। पर आप जब वो काम कर रहे हो, चालू है, तब तो मालूम नहीं है ना कि ये काम बेकार है। नहीं, तब आपको कोई वेदना होती है? नहीं, तभी खुशी होती है। हाँ, तभी आपको लग रहा है मेरा काम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है। बराबर बराबर। तो समझ में आ गया कि क्रियमाण कर्म दुखकर नहीं होता, कभी भी दुखदाई नहीं होता। जो चालू कर्म है वर्तमान में कभी भी दुखदाई नहीं होते। बराबर? हाँ, बोलो अब कोई क्वेश्चन? आज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आज सब। आज इसको टाइटल को क्या नाम दूँ वो सवाल हो जाएगा मेरे लिए, पर यही देना है, क्रियमाण कर्म ही। क्रियमाण कर्म दुख कर नहीं होता। बराबर? बोलो कोई प्रश्न? ना। प्रश्न नहीं है ना? चलो तो फिर जय जिनेन्द्र, कल मिलेंगे फिर से, ठीक है? अच्छा, ठीक। जय जी, जय जी।